या तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहां को पालने वाला है और दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hope you all are fine. Alhamdulillah. This is Sayyada Priya Tabassum 2K20 batch from Shadan Institute of Medical Science. As you all know, we all have gathered here for this online guidance session. This include all your doubts regarding second year subjects like how to approach it, what books you need to follow, what are the other sources for you, how to prepare for second year subjects, how to present in exam, etc. etc. I know second year is already started in your colleges, but still it's not too late. Still many of you are in confusion about second year subjects. Am I right? Don't worry, try to attend this session till the last. Are you all excited for this? Hope so. So before beginning, let's have a small introduction to IMSA, which is organizing this free academic Zoom session for all of you all. I would like to call Dr. Tahura Begum, Vice President IMSA, for a small intro to IMSA. Dr. Tahura, are you there? Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, it's an honor for me to present before you all a brief introduction of IMSA. Because at IMSA, I have got to learn a lot of things that changed me as a person for good and my perspective towards life. So let me put before you all what IMSA stands for. IMSA stands for Initiative of Medicos for Service and Academics. It is a non-profit initiative taken by Medicos from all over Telangana with an aim to create a unified platform for medical students working towards self-improvement and upliftment of the society under the divine guidance of Islam. The whole and sole purpose of IMSA is to please Allah subhanahu wa ta'ala, as we felt the need to have a Muslim Medicos community platform which works in wide aspects ranging from academics, tarbiyat or personality development, and social service, all under the divine guidance of Islam. So let's embark on a journey to strengthen our iman, elevate our skills, and serve humanity with compassion. Jazakallah khair. Thank you, Dr. Tahura, for a brief intro to IMSA. Inshallah, we will be starting a detailed discussion on IMSA at the end of the session before question and answer session. Now we will start with second year subject. So second year subjects includes pharmacology, biology, and pathology. And remember, this is the sequence for your university exams too. What are the importance of second year subjects? If we talk about academics, it's a double of what you did in first year. Physio and anatomy enlighten you about the normal organization and process of the body. But now in second year, you all are shifted from normal to abnormal. I would say working on cadaver is now behind your instinct. You will be interacting with live patients. Here subjects are a base for clinical subjects. These all are foundation subjects. If you are strong in these subjects, then your final year will be easily managed. Like a cakewalk for you all. You can easily manage. Okay, so with this, let's start with pharmacology. To call Dr. with pharmacology. Shabnam, can you? Yeah. Assalamu alaikum, everyone.
How are you all? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे. This is myself Shabnam Miraj, 2K20 batch from Shadan Institute of Medical Sciences. Starting with pharmacology. What is pharmacology? Suppose a patient comes to you with like, doctor साहब मुझे फलाना फलाना तकलीफ हो रही है, कुछ दवाई लिख के दो. So basically the study of those dawai is pharmacology. So your intention in the studying of pharmacology should not only be passing your university exam. Inshallah, you will pass it anyhow, but to become a great physician. And none of your clinical subject is complete with pharmacology. All your final year subject treatment part is your pharmacology. So do not just read it for your university. You better be do it with an intention to be a great doctor. With this introduction to pharmacology, let's start the session. In pharmacology, basically we have drugs, and it's like the classification of drugs. Then it's pharmacokinetics, it's pharmacodynamics, the indications, the contraindications, like indications when can we use the drug, to whom can we use the drug, contraindications, the side effect of using the drugs. So basically, the pharmacology revolves all around the drugs. Okay, Shabnam. What are the tips for pharmacology? Can you share with us and our juniors? Coming to tips for pharmacology, I would like to share my experience, the way I have approached for pharmacology. What I used to do is, before attending any lecture at college, I used to watch a video lecture of the topic beforehand, so that I have a general idea about what the topic is. Then I would listen to the lecture at my college. After coming back, I would have a glance at by reading the textbook and prepare notes from the same. So in this way, for a particular topic, it will be nearly 3 to 4 times of reading. So again, before internals, we'll read it anyhow, and before pre-finals and finals. In this way, we can have multiple revision of a single topic, and no topic will be a new thing and hard for us. And the way we make notes should not be a rougher notes. You better try to make the notes as if you are going to write it in your final exams, like with night flow charts, with the diagrams. So it will be easy for you in your final exams. And this your notebooks will be your exam preparatory manual and last minute revision for your exams. Another thing you can do for pharmacology is, as your second year, your postings have started. In whatever posting you might be, you will have the prescription doctor is writing. Look at the prescription and look what drugs doctors are prescribing, and just like look what class of the drug is belonging to. What are this indication? Ask the doctors. Just go home and look at what drugs were given, why were they given. So in this way, you can even have an idea and a more revision type for pharmacology. That's what I can say for study tips. Just be punctual, be consistent, be honest with your studies, read from the day one. That's all I have to say about study tips. Okay. So, how is the distribution of syllabus? Which chapters we should focus more on? For pharmacology, we have 2 papers, paper 1 and paper 2. Generally, paper 1 is easier than the paper 2, so we better try score more in paper 1 if in case paper 2 gets tougher for you. In paper 1, we have general pharmacology, which is mostly the SAQs and VSAQs come from. Then for the LAQs, they mostly give from either ANS or CNS, and other will be either respiratory or GIT system. Coming to paper 2, one LAQ will be from the antibiotics
and another will be either from renal system or CVS, or it can be anything. It's just the most repeated in the previous, but it not means that it cannot come from the other years. So you better be you learn classification from every chapter, so that if you do not know anything, at least you can draw the classification chart. That's all. How to present paper in exam that might help all the juniors for pharmacology? Coming to paper presentation, the what we write is secondary thing, but how we write is primary when it comes to university exam. As the age-old quotation that first impression is the best impression. So try to impress the examiner as much as you can. So better you start with the one you know the best, then proceed with the one you do not know. So by the time the examiner reaches the last answer which you don't know, he will be in a thought that you know the subject and you have read well. So he will give a decent scoring to the answer which you have not prepared well. And the second thing is, right, since the paper correction is online and the papers are scanned, so better you use a darker pen so that आपका पेपर फीका ना लगे एग्जामिनर को. बट ऐसा नहीं है कि इंक इतना ज्यादा लीक होके अगला पेपर पे भी आपका प्रिंट हो. And use more than one color pen so that your answer do not look monotonous. Use as many papers as you can. Do not make it compact. Make beautify as much as you can. Do not write paragraphs. Better write points. Points is not primary. You use the flow charts, diagrams. In pharmacology, mechanism of action you can write in terms of flow chart. In mechanism of action, you can draw the diagram in which the drug is acting, the receptor the drug is acting. So you can just draw the imaginary diagrams, like not a like the one in the textbook. Mostly in majority textbook, many diagrams are not given. Just create your own while you are making notes. Then. Okay, so most of the students ask what are the books to follow and what are the pros and cons of each book. Can you please describe this, and can you please add on what books you have followed? Yeah. Coming to books, the Shanbagh, it is a very student-friendly book. The pros is obviously it is student-friendly. You need its topic is very understandable. It's in the point wise, so you need not worry. And it is a book helpful for your even last minute. But the concept, since it is not a standard book, and pharmacology is one of the major subject you need to learn well, so it's not a standard book. Another option we have is Sharma and Sharma. It is also standard Indian pharmacology textbook with easy and good conceptual content. The standard Indian book is K.D. Tripathi. I have personally used K.D. Tripathi. The book is, if you are starting from the day one, it will be very easy for you if you are with K.D. Tripathi. You better read with K.D. whatever you are. If you are reading K.D. Tripathi, make your notes, and your notes will be act like Shanbagh for you. Disadvantages are, since it is a very extensive to study, it may be harder if you're doing this book for the last minute revision. Then another book is Lippincott Pharmacology. It is also a short, simple foreign author textbook for pharmacology. We also have many video lectures. Okay. Other reference books also we have like Kaizen, Goodman and Gilman. You can also prefer these textbooks. Okay, so what are the videos, resources, and exam-oriented books? Can you add this? We have many video resources available, like Dr. Bharat from Prep Ladder, best balance between both university exam and PG preparation. Then we have Dr. Ranjan from Marrow. He's also a very good, like mainly PG based, full of facts. But notes are well organized. That will make sure exam preparation easier. Like if you're not making notes, then these hard copy notes can help you.
the Dr. Gobind Rai Garg sir, the one I have followed in my second year. It is short and highly PG based. Sir uses mnemonics very well. Coming to mnemonics, you do not try learn mnemonics for every drug, because at the end, sorry, you will not remember that why it was that mnemonic for what was the mnemonic for. So better only for those things that you are unable to remember, use mnemonics then. Then another options we have like Dr. Priyanka Sachdeva ma'am, Ninja Nerd in the YouTube videos, Osmosis, Speed Pharmacology, Kaplan Pharmacology are other resources you can use for pharmacology. The exam oriented books these are last minute books. Like if you have not read the whole year, then still you can do pharmacology within the last 1 month by reading these notes like Smart Notes, Student Notes, Pharmacology Visual Mnemonics by Medinas. And since MCQs are added, you can use MCQ Pharmacology by KDT, Conceptual Review of Pharmacology by Ranjan Kumar Patel, MCQs by G. Vidyasagar. Coming to question banks, we have Shia, Usmania, Falcon, and HAQs. You need not read to entire textbook. Keep these question banks by your side. Take the previous year question and read only those questions. And that's all for pharmacology. Wishing you all the very best. Hoping you all become a very good doctor. Thank you. Jazakallah khair. Thank you, Dr. Shabnam Miraj, for your wonderful explanation and sharing all your experiences. Now we can move forward with microbiology. I would like to call Dr. Saifuddin to add on microbiology. Assalamu alaikum. Am I audible? Hello. Walaikum assalam. Yes, you are audible. All right, perfect. So I'll be taking your microbiology part. Just hang on a minute. So all right. So I guess the screen is good with everybody, right? थोड़ा blur आ रहा, I guess. So guys, I want you all to interact with me. थोड़ा अपन क्या इसको interactive रखेंगे इस session को, ठीक है? Tell me if there is any fault from my side. So let's start. What is microbiology? ठीक है. अब अपन सुनते हैं इसको एक तो पर्टिकुलर कोई डिजीज हो गया, एक पेशेंट को क्या है, आपके घर में किसी को कोई पर्टिकुलर डिजीज हो गया, ठीक है. फॉर एग्जांपल उनका तो मलेरिया हो गया, ठीक है. मलेरिया हो गया, आपको कैसा मालूम, ठीक है. व्हाट इज कॉजिंग दिस मलेरिया? हाँ, तो ये बैक्टीरिया, ये जो ऑर्गेनिज्म है, कैसा, कौन है वो कॉज करने वाला, ठीक है. सो दैट इज वेयर योर माइक्रोबायोलॉजी किक्स इन, राइट. इसमें आपको क्या बोलते हैं, सो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी इज कंप्लीटली अबाउट what all organisms causing the disease, ठीक है. how they infect you, then क्या बोलते हैं, सो कौन से रूट से एंटर करेंगे आपके बॉडी में, ठीक है. एंड what are the क्या बोलते हैं, सो वही मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ठीक है. these all things will come in your microbiology part, ठीक है. So microbiology in the medicine is study of microorganisms and their interaction with human health, ठीक. And it encompasses various disciplines such as medical microbiology, immunology, infectious diseases, ठीक है.
इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द मेडिसिन, जैसा कि आपको बोला कि अब कोई डिजीज प्रोग्रेस कर रहा, तो व्हाट इज द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कॉजिंग इट। आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग इट। so that's a microbiology, it interferes medicine में। आपको कहते so it will teach the life cycles and all the mode of infections कैसा प्रोग्रेस करेंगे। so इसमें बेसिकली अपने को क्या रहता माइक्रोबायोलॉजी में, लैब डायग्नोसिस बोल के एक जो पर्टिकुलर पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, इट विल हेल्प यू यू नो फाइंड आउट द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विच इज कॉजिंग दिस डिजीज, राइट। So you will be having stains, you will be having क्या बोलते so RT-PCR tests, you will be having certain क्या बोलते so certain tests which will be specific for particular organism, yes the culture, right, exactly। so you will be having particular cultures। तो अब हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर टेस्ट रहेगा जिससे आपको मालूम होगा कि चलो अगर ये कल्चर में ये पॉजिटिव आ रहा, सो इट्स गोना कॉज, इट इज गोइंग टू बी कॉज बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ यू विल गेट टू नो कौन सा ऑर्गेनिज्म वो डिजीज कॉज कर रहा। देन अपन अब मालूम कर लिए, ठीक है, अपन मालूम कर लिए पर्टिकुलर डिजीज इसको कॉज कर रहा, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इसको कहते सो इन्फेक्ट कर रहा और ये डिजीज को प्रोग्रेस कर रहा। so accordingly to that we can क्या बोलते so we can treat the patient, right, we can use we can use your drugs and all those things, ठीक है। so that's all for the intro part, and the key areas in microbiology are this bacteriology, virology, mycology, that is your fungi, and then you have parasitology, immunology, and epidemiology, right, okay। so as I was telling you, the laboratory techniques जो आपको बोला था, there are some sensitive testing, see, there are cultures, जैसे आपको ग्राम स्टेन बोला, then molecular diagnosis बोला, then serology, blood cultures, immunological assays, ये सब रहेंगे आपकी करते सो माइक्रो मतलब ये माइक्रो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के पार्ट में। तो चलो इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेट्स गो विद द स्टडी टिप्स, राइट। स्टडी टिप्स, हाउ डू यू स्टार्ट योर माइक्रोबायोलॉजी प्रिपरेशन। तो लाइक एवरीबडी, लाइक जो एक्सपर्ट जो बोलते, लाइक जो टॉप लेक्चर्स देते, दे विल से यू गो बाय सिस्टम वाइज, ठीक है। वाई डू यू गो बाय सिस्टम वाइज, क्यों जॉब हो रहा है आपको, ठीक है। सिस्टम वाइज आप जाएंगे तो फॉर एग्जांपल आप जीआईटी ले लो, चलो फॉर एग्जांपल सीवीएस ले लो, तो सीवीएस में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है, वो आपको वही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू गो ऑर्गेनिज्म वाइज तो आपको सारे ऑर्गेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, वेरएज इफ यू गो सिस्टम वाइज तो जो पर्टिकुलर डिजीजेस अपने को सिलेबस में है वही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इट विल बी वास्ट, और सिस्टम वाइज पढ़े तो आपको क्या है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती, एंड यू कैन कोरिलेट विथ योर पैथोलॉजी ऑल्सो, ठीक है, यू कैन कोरिलेट विथ योर पैथोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। और उसके कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स जो रहेंगे आपके, जैसा सीवीएस में आपको आएगा, सीवीएस में क्या बोलते सो इन्फेक्ट करा, तो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स पर्सन विल मैनिफेस्ट, समझे। सो that is why we recommend to go system wise। then the most and foremost important part is the laboratory diagnosis, which is the heart of microbiology, ठीक है, which is the heart of microbiology। So I guess everybody are following, right? Give me a thumbs up everybody, ठीक है। So यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को तो give me a thumbs up in the chat box, or give me a reaction over there। Yeah, good everybody। All right, so I guess everybody is active over here, ठीक है। शाहिद भाई, मेडिको 98, okay, फातिमा, I guess doctor, everybody is active over here। That's good, okay, that's a good sign। so क्या बोल रहा था, लेबोरेटरी डायग्नोसिस इज द हार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आप ये आपके आंसर में या फिर आपके कल सो आप ये नहीं पढ़ेंगे तो यू आर कंप्लीटली जीरो, बिग जीरो, ठीक है ना। ये पार्ट को आप छोड़ देंगे, ये पार्ट भी आप गलत लिखेंगे
तो यू आर completely zero for this part, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल अबाउट, जैसा आपको बोला, लाइव डायग्नोसिस। आपको कौन सा लेबोरेटरी टेक्निक से आप उसको डायग्नोस कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर डिजीज जो प्रोग्रेस हो रहा, तो अगर वो नहीं लिखेंगे, वो आप क्या से नहीं पढ़ेंगे, तो इट्स कम्प्लीटली यूजलेस, ठीक है ना। तो कहाँ से शुरू करूँ मैं माइक्रोबायोलॉजी, कहाँ से शुरू करूँ, बोलो हो, कहाँ से शुरू करूँ। सो व्हाट, तो वही हम लोग क्या बेसिक से जाएंगे ना भाई, बेसिक से जाएंगे तो विल फर्स्ट गो विद द जनरल माइक्रो पार्ट, ठीक है। जनरल माइक्रो में आपको क्या पढ़ना रहता है, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, एवरीथिंग, जो जो टेस्ट है सारे, क्या है, एक बेसिक बेसिक ऊपर से आइडिया आ जाता, ठीक है ना। और जनरल माइक्रो आप अच्छा कर लिए, तो आगे जाके आपको जो सिस्टमिक माइक्रो जो भी है ना, उसमें आपको क्या बोलते हैं, तो थोड़ा आसानी हो जाती है। लाइक अगर आपको याद नहीं आ रहा, समझो कुछ याद नहीं आ रहा, किसी का लैब डायग्नोसिस याद नहीं आ रहा आपको, तो आप क्या बोलते सो आंसर में आप क्या बोलते सो पर्टिकुलर जो पढ़े जनरल में, वो एक अंदाजे से लिख जाते हैं। यू विल गेट टू नो दिस व्हेन यू नो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड यू रीड दैट, ठीक है। तो फर्स्ट जनरल माइक्रोबायोलॉजी से शुरू करेंगे। सो हाउ डू यू स्टार्ट दैट, पहले वीडियो लेक्चर देखो आप, ठीक है। वीडियो लेक्चर देखो, कौन से वीडियो लेक्चर देखना वो आपको आगे बोलेंगे इंशाल्लाह। सो पहले वीडियो लेक्चर देख लो आप लोग, हाँ। फिर उसके बाद अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नोट्स नहीं भी बना रहे तो जो पर्टिकुलर लेक्चर देख रहे हैं आप, उसके नोट्स रहेंगे अवेलेबल, वो उसमें एनोटेट कर लो, उसमें साइड्स में पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। नोट्स बना लेके लिख रहे, या फिर वो एनोटेट कर लेके लिख ले, ऑलराइट, ठीक है। तो इन दैट वे यू विल हैव अ ट्रैक ऑन व्हाट ऑल यू हैव स्टडीड देन। और हाँ, माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत बड़ा डीमेरिट है, ठीक समझना ये, इट्स अ कंप्लीटली ड्राई सब्जेक्ट, वेरी ड्राई, समझे ना। ऐसा रहता है कि भाई, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह में कुछ पढ़ा, समझो सुबह में एक पर्टिकुलर डिजीज का एक लेक्चर देखा, टेक्स्ट बुक भी पढ़ा, ठीक है। सो शाम तक मेरे को याद नहीं रहता हो, ठीक है। शाम तक याद नहीं रहता, इट्स नॉट माई ओन प्रॉब्लम, इट्स प्रॉब्लम ऑफ एवरीबडी। हर कोई बोलेंगे आपको, माइक्रोबायोलॉजी पूछो आप तो क्या है, बोलता है अरे बहुत ड्राई सब्जेक्ट है ये, कैसा कर सकते हैं उसको, कैसा पढ़ना, क्या करना। सो द सिंपल ट्रिक, ठीक है ना, सिंपल ट्रिक इज रिवाइज इट, समझे ना। सिंपल ट्रिक इज रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, समझे ना। मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहो, ठीक है। बार बार रिवाइज करने से आपको क्या है, वो चीज़ आपको, वो पर्टिकुलर टेस्ट का आपके दिमाग में बढ़ जाता है, ठीक है। देन क्या बोलते हैं, सो आपका क्या है, माइक्रोबायोलॉजी विल बी यूजफुल इन योर एसपीएम पार्ट आल्सो, ठीक है। वहाँ पे भी एक ह्यूज चैप्टर है उसके रिलेटेड, कम्युनिकेबल डिजीजेज में, उसमें आपको क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। सो इट विल बी गुड फॉर यू इन योर थर्ड ईयर एसपीएम सब्जेक्ट, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रख लो, ऑलराइट। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द, एक मिनट। सो यहाँ तक एवरीबडी आर क्लियर, राइट? Everybody are clear, right? Your queries will be answered in the Q&A session. So take a note on that. Queries आप लोग note करते जाओ. We'll answer your query in the क्या बोलते हैं, so Q&A session. Right now, tell me all are following this or not. ठीक है? Do you want me to call your names? No, right? So it's better, आप लोग थोड़ा एक interaction दे दो मेरे को in the chat box, or just give a reaction. All right, cool. All right. ठीक है, चलो, that's good. Alright, तो यहाँ तक आ गए अपन. So next thing is we'll go to the क्या बोलते हैं, so this thing, the theory syllabus, ठीक है। theory जो क्या बोलते हैं डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी का, ऐसा देखो पेपर वन में यू हैव टू क्या बोलते हैं, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस चैप्टर, क्या है, जनरल माइक्रोबायोलॉजी जैसा बोला। उसमें क्या बोलते हैं, सो आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट भी आ जाएगा, ठीक है।
फिर देन इम्यूनिटी है, वही आपको कैसे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 रिएक्शंस जो आपको पढ़ने रहेंगे, उसके ऊपर भी क्या आपको अच्छे खासे एसएक्यूज आ जाते हैं, या फिर कंप्लीटली पूरे 4 एक साथ पूछ लेता आपको, समझे ना। तो ये रिएक्शन के बारे में आपको एक साथ पूछ ले सकता है, या फिर एक एफएक्यू भी आ सकता है। देन सीवीएस ब्लड, इसमें से एलएक्यूज आ सकते हैं, लाइक रोमेटिक हार्ट डिजीज का है, एंडोकार्डियाटिस के जो क्वेश्चंस है, और ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन जो भी है ना आपके, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस जो स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोरस जो भी होंगे आपके, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ। देन यू हैव जीआईटी हेपाटोबिलियरी, ठीक है। देन एडकॉम के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाता आपका, ठीक है। एडकॉम को तो आपको मालूम है कैसा लिखना रहता, राइट, कौन से लिखना रहता। देन रेस्ट ऑफ द पेपर 2 का जो है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, टिश्यू इन्फेक्शन, ये क्या बोलते हैं, CNS, RS, genitourinary sexually transmitted infections, and finally zoonotics है। These are all क्या बोलते हैं, these are all ठीक ठाक टॉपिक्स है। इसको क्या बोलते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसके, आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें से, यू विल हैव टू गो थ्रू योर क्वेश्चन बैंक, आइदर सिया और फैल्कन, और क्या बोलते हैं आपका HAQ है। यू हैव टू गो थ्रू दिस, तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें से इम्पोर्टेंट जो रहता, मतलब जो ज़्यादा ज़्यादा बार रिपीट हुए प्रीवियसली, आपको क्या दोस्तों वो पढ़ना रहता, ऑलराइट। देन चलो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट विल गो फॉर बुक गाइडेंस, ठीक है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आप लोग कैसे भी पूछेंगे ये, ठीक है, ये इसके बगैर सेशन ही बेकार है, ठीक है। तो फर्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट बुक, तो हर कोई फॉलो करेंगे ये, माइक्रो बोले तो अपूर्वा शास्त्री चाहता किसी के मुंह से, ठीक है। मस्ट रीड बुक है फॉर यूनिवर्सिटी एंड पीजी एंट्रेंस, ठीक है। अपूर्वा शास्त्री में एक अच्छी बात यह है कि उन्हें अच्छी तरीके से आपको कैटेगराइज करके दिया, इंट्रो पार्ट, देन एटियोलॉजी, थोड़े जगह पे पैथोजेनेसिस दे दिया, पैथोजेनेसिस इन द सेंस हाउ द डिजीज प्रोग्रेस, थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता। और एटियोलॉजी पार्ट में आपको उसका जो साइकिल रहता, वो जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर साइकिल फॉलो करता, जैसा मलेरिया का साइकिल है ना इतना बड़ा, जो आप नीट कैस्ट से पढ़े थे, ठीक है, वैसे साइकिल्स आपको रहेंगे फिर से यहाँ पे, ठीक है। वैसे साइकिल्स आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन यू थोड़ा पैथोजेनेसिस का पार्ट, उसके बाद क्या बोलते सो क्लिनिकल फीचर्स कहीं पूछ दिया तो वो भी लिख देना था आपको, ठीक है। दिस ऑल यूल कम टू नो व्हेन यू ओपन योर क्या क्वेश्चन बैंक, उसमें क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को क्या करना है, वो आप लोगों को आगे मालूम है। तो जैसा कि बोल रहे थे, मस्ट रीड बुक है ये पीजी के वास्ते। और अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बोल रहा था, इसमें जो लैब डायग्नोसिस है ना, एलडीस जो है ना, इसमें लैब डायग्नोसिस अच्छा एक टेबल बना के दिया है इन्हें, ठीक है। अच्छा एक टेबल, मतलब पूरे एक टेबल में दे दिया उन्हें कि ये पर्टिकुलर पूरा डायग्नोसिस है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के वास्ते, ठीक है। आपको खाली और लैब डायग्नोसिस का टेबल रट्टा मार लिया ना, तो समझो आपको फुल मार्क्स आ जाते, ठीक है। That's all. Okay, ये अपूर्वा शास्त्री the gold standard book and it's good for university and PG, ठीक है। MCQs कैसे ही पढ़ ले सकते हैं आप इसमें। Then you have अनंत नारायण book, second most popular book for microbiology। बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है इसमें, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है, बट इफ यू वांट टू मेक नोट्स फ्रॉम दिस अनंत नारायण, इट्स अ गुड बुक, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं इसमें, लेकिन यू हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम दिस। फॉर अपूर्वा शास्त्री यू डोंट हैव टू मेक नोट्स, ठीक है। अपूर्वा शास्त्री में डायरेक्ट आप मार्क कर लेके पढ़ ले सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज कैटेगराइज्ड देयर। देन बवेजा इज आल्सो देयर, शॉर्ट कंटेंट, मोस्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले लेके बैठ जा सकते हैं आप, कुछ भी नहीं पढ़े तो, ठीक है। देन वन मोर एक एक्सक्लूसिव बुक है फॉर पैरासिटोलॉजी, दैट इज व्हाट इज दिस, पैनिकस पैरासिटोलॉजी। अच्छे डायग्राम इलस्ट्रेशन मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। अपूर्वा में भी है, लेकिन फिर भी इट्स एन एक्सक्लूसिव बुक, अगर आपको रेफर करना है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं करे तो नो इशू, ठीक है। सो देन वन मोर सोर्स यू हैव इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, रिडिकुलस सिंपल, ठीक है, शॉर्ट है एग्जाम के वास्ते, यू कैन रेफर इट। तो ज़्यादा आप लोगों को ही बोलता नहीं, लेकिन फिर भी इफ यू वांट यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन इट एंड एग्जाम से पहले रेफर कर सकते हैं। वन मोर इज जवातीज, स्टैंडर्ड ऑथर का है भाई, आपको रेफर करना है तो यू कैन रेफर, ठीक है। देन विल मूव ऑन टू द क्रूशियल पार्ट, वीडियोस कौन से देखेंगे सर, ठीक है।
I hope everybody is clear यहाँ तक. All right. I hope everybody is clear. ठीक है, तो we'll move on to the क्या बोलते हैं, वीडियो सोर्सेस. द मोस्ट प्रिफर्ड, मतलब सबसे ज्यादा माइक्रोबायोलॉजी बोले तो इनका ही नाम आता कहीं भी. हिज डॉक्टर अब्दुल नसीर सर. आप लोगों को भी मालूम होगा कि नहीं. वन ऑफ द टॉप फैकल्टी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज करंटली इन गुरुकुल. ठीक है. करंटली बेस्ट माइक्रोबायोलॉजी कंटेंट, इनका कंटेंट अच्छा रहता है. पर्सनली वॉच्ड हिज वीडियोस, मतलब सेकेंड ईयर में वही फॉलो करा उनके लेक्चर्स. तो he'll teach you pretty well, right? He'll teach you pretty well about microbiology. जो उनके नोट्स भी अच्छे हैं. ठीक है, जैसा पढ़ाते हैं उन्होंने, हर एक चीज़ क्या है अच्छा डिटेल में बोलते हैं, जैसा आपको एकदम दिमाग में बढ़ जाता है. ठीक है. बेसिक आइडिया आ जाता है. क्रिप्स क्रिस्टल के शॉर्ट वीडियोस. ठीक है. टेक्स्ट बुक का तो पढ़ लिया तो आपको पूरा एकदम रिवीजन कैसा हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज डॉक्टर शिविका सेठी मैम. मैरो में है माइक्रोबायोलॉजी के. लेक्चर्स इनके अच्छे लंबे रहते हैं, बहुत डिटेल में रहते हैं, और डेप्थ में जाना है तो आप यू कैन रेफर दिस मैरो मैरो की जो मैम है, शिविका सेठी मैम. यू कैन रेफर. देन यू हैव प्रीति शर्मा मैम. ठीक है. इनके कहते से जो ट्रिक्स एंड निमोनिक्स है ना, those are very famous. She is famous for these tricks and mnemonics. She also takes pathology, but साथ में microbiology भी पढ़ाते हैं नो. So she is famous for her ये tricks and mnemonics, all those things. तो आप उनका रेफर कर लिए तो it's क्या है, आपको अच्छा आइडिया आ जाता, पढ़ने में आसानी हो जाती. ठीक है. Then you have Kaplan's immunology. इम्यूनोलॉजी के इम्यूनोलॉजी के आपके क्या सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग करना है तो यू कैन रेफर दिस. देन ऑस्मोसिस है, अच्छा एनिमेशन के साथ आपको पढ़ाएंगा इन्हें. ठीक है. आई गेस यू हैव वॉच्ड हिज लेक्चर्स इन फर्स्ट ईयर. ठीक है. देन यू हैव स्केची माइक्रोबायोलॉजी. दिस वीडियोस आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन फोटोग्राफिक मेमोरी. हाजी भाई शेयर करे थे आई गेस रिसेंटली. तो आई गेस एवरीबडी को आइडिया है. नहीं है आइडिया तो जस्ट गो ऑन यूट्यूब, एक दो वीडियोस रहते हैं उनके, चेक कर लो. ठीक है. Then you have Priyanka Sachdev ma'am. She's currently in Cerebellum Academy. ठीक है. She's also a good lecturer. अच्छा पढ़ाते हैं नो. ठीक है. Next, right, I'm going a little bit fast or not, मतलब तेज हो जा रहा है क्या मेरे से? Everybody is following. Am I clear, right? यहाँ तक तो क्लियर होना मैं. All right, that's cool. Good. All right. ठीक है, चलो. Then we'll come to some YouTube channels है. ठीक है. सब्सक्रिप्शन नहीं लिए तो यू कैन फॉलो दिस यूट्यूब चैनल्स. ठीक है. लास्ट मोमेंट पे मेडिकोस, क्या बोलते सो ये सिस्पक्शनालिस. ठीक है, नाम भी लेने नहीं आ रहा मेरे को. सो मेडिनास है. देन अरमाडो हाशिम है. फिर डॉक्टर मेंटल्स. यू ऑल कैन फॉलो दिस एटीपी डटी मेडिसिन ऑस्मोसिस जो अभी क्या मेंशन कर रहे थे, एंड फॉर माइक्रोबायोलॉजी. यू कैन फॉलो दिस सोर्सेस कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब. ठीक है. देन लास्ट मिनट पे आपके लाइफ सेविंग बुक्स थोड़े रहते हैं. ठीक है. ये स्मार्ट की बुक एक है. ठीक है. स्मार्ट की करते तो अच्छा होने क्या है, क्वेश्चन दे दिया, नीचे आंसर दे दिया. ठीक है. तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वो पढ़ ले सकते हैं आप. थोड़ा अगर आप पहले से वीडियो लेक्चर है वो देख लिए कर लिए तो भी आपको अच्छा आसान रहता है ये फॉलो करने के वास्ते. Then you have Agam student notes. Then one more is last minute lab diagnosis shortcuts. Then प्रियंका सचदेव मैम के रैपिड रिवीजन देख सकते हैं अगर आप क्या बोलते हैं, आपका अभी तक कोई वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो रैपिड रिवीजन के वीडियोस देख सकते हैं. ये यूट्यूब चैनल की लिंक है. देन नेक्स्ट, हाँ, अभी जो अपने को एमसीक्यूज आ रहे हैं एग्जाम में, तो यू कैन फॉलो दिस बुक्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस. क्या है, रिव्यू बुक ऑफ अपूर्वा एंड जी विद्यासागर. ठीक है. यहाँ तक हो गया ना. देन चलो पेपर प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे अपन. पेपर प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे. तो एक परफेक्ट माइक्रो आंसर होना है आपको. ठीक है. आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है. फॉर एग्जाम्पल ले क्यों, मैं 15 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट 13 तो स्कोर करना है भाई. ठीक है. कोई भी 15 तो नहीं डालता है, आपको एटलीस्ट 13 तो स्कोर करना है. तो यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू फोकस मोर ऑन द प्रेजेंटेशन. ठीक है. रादर देन क्या बोलते सो पूरा कुप्पा कुप्पा भर दिया था नहीं रहना. ठीक है.
So first thing is you have to present everything in points. क्या point wise present करना है सब कुछ, ठीक है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप पैराग्राफ में प्रेजेंट करें तो मैं सीधा कट करके नेक्स्ट पेज पे चल जाता, ठीक है. देता 1-2 मार्क का देके छोड़ देता. You won't get good marks even though you have written quality content, लेकिन you won't get marks. So most important is present it in the points, ठीक है. So first intro देंगे आप. What is that disease? What is it? क्या cause कर रहा, ठीक है. What type of organism is that? Then you go with the etiology part, ठीक है. etiology यानी वही organism क्या है, organism क्या है, either it's gram positive, gram negative. थोड़ा बेसिक आपको अपूर्वा देखेंगे तो you'll get an idea on that, ठीक है. Then mode of transmission, कैसा उन्हें आपको इन्फेक्ट करेंगे. It's either airborne और क्या बोलते सो zoonotic, और क्या बोलते हैं आपका वाटर ड्रॉपलेट से जाएगा, या फिर क्या बोलते टचिंग या फिर है ना भाई वेरियस फॉर्म्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन. देन विरुलेंस फैक्टर्स. व्हाट आर द विरुलेंस फैक्टर्स, वही ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखेंगे और ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट रहता, फॉर एग्जांपल द कैप्सिड पार्ट, ठीक है. और द सेक्रेशंस, द टॉक्सिन्स, लाइक क्लोस्ट्रीडियम में आपको बहुत जो टॉक्सिन रिलीज करता हूँ, ठीक है. वैसा है. देन द नेक्स्ट पार्ट इज क्लिनिकल फीचर्स. अगर आप ये मेंशन करें तो इट्स वेरी गुड, समझे ना. तो एग्जाम में समझता है चलो स्टूडेंट कुछ पढ़ के आया, ठीक है. एंड द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द लेबोरेटरी डायग्नोसिस. इसके बगैर चलते सो इसके बगैर आपको 1 मार्क भी नहीं. ये लिखे तो आपको मार्का मिलेंगे पूरा, अगर ये नहीं लिखे तो होना बोल के मार्का काटेंगे भाई आपके एग्जाम में से, पेपर में से होना बोल के मार्का काटेंगे. ये नहीं लिखे तो इट्स सुसाइड, ठीक है ना. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैब डायग्नोसिस. अपूर्वा रेफर करो अच्छे, फिर से बोल रहा हूँ, देयर आर गुड टेबल्स इन दैट, रेफर कर लो. और थोड़े क्वेश्चंस में अगर ट्रीटमेंट पूछा तो ट्रीटमेंट मेंशन करो, अगर नहीं पूछा तो नो नीड टू मेंशन. एंड जहाँ पे भी डायग्राम्स की जरूरत है डाल दो, ठीक है. लाइक HIV, जिसका जो है ना HIV का एक डायग्राम रहता वायरस का, वो डाल देना. और फ्लो चार्ट्स फॉर पैरासाइट्स, ठीक है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय पार्ट. एंड तो अभी जो एक टिप देना चाह रहा हूँ, माइक्रो इज अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, जैसा पहले ही बोला, वेरी ड्राई सब्जेक्ट. इसको आप जस्ट बिफोर एग्जाम लेके नहीं बैठ सकते. ट्रस्ट में, जस्ट बिफोर एग्जाम लेके नहीं बैठ सकते. 1 महीना पहले लेके बैठा मैं पढ़ूंगा, स्टार्ट करूंगा, एक बार पढ़ लिए, दूसरी बार याद नहीं आता तो फिर रिवीजन में आपको क्या तो फिर से पढ़ना पड़ेगा. सो आइडियल टेक्निक इज यू स्टार्ट फ्रॉम द डे वन से स्टार्ट करो, पढ़ते जाओ, रोज पढ़ते जाओ, खत्म करते जाओ, ठीक है. देन एक संडे डिसाइड कर लो, डिसाइड कर लेके यू डू रिविजन, ठीक है. कुछ नहीं तो नहीं भाई, खाली एलडीज के रिविजन करते रहो अपना, ठीक है. लैब डायग्नोसिस का रिविजन करो बस, ठीक है ना. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन द माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट. So I'll hand over to Fariha. Fariha, you there? Yes. Thank you, Dr. Saifuddin, for your wonderful explanation and sharing all your tips and experiences. Now we will proceed with pathology. I would like to call Dr. M.A. Aisha Noshin to go ahead with pathology. Assalamu alaikum warahmatullahi everyone. This is Dr. Umaysh Noshin. As you all know, from the past 1 hour, Dr. Fariha, Dr. Shabnam, Dr. Saifuddin have covered extensively about the subject with brief intro about second year. I am here to put my viewpoints on pathology. I hope it would be beneficial for you, and I just hope that you gain most of the things from this session to inculcate in your daily reading routine. So let's begin with it. Pathology. Coming to the pathology part, be it second year के कुछ भी subjects में everyone please mute. सेकेंड ईयर के कोई भी सब्जेक्ट रहते, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 भी सब्जेक्ट्स आपका मेन बेस फंडामेंटल नॉलेज आपको देती. बस आपका जो स्ट्रांगनेस, आपकी जो स्ट्रेंथ है आगे जाके मेडिसिन पार्ट में या फिर बीइंग अ गुड क्लिनिशियन, आपको जो जो रिक्वायर्ड है ये 3 सब्जेक्ट्स आपको देते. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ कि आप पोस्टिंग्स जो अटेंड करते वहां पे
कोई भी बीट एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, वेदर इट्स ऑब्स गाइनी डिपार्टमेंट, पीड्स के डिपार्टमेंट, कुछ भी रहने, वो लोग आपको कितना भी एक्सटेंसिवली कुछ भी पढ़ा लेंगे, आप बस पोस्टिंग का टाइम उनको दे दो। टाइम मैनेजमेंट इज द थिंग जो आपको गेन करना है पूरे एमबीबीएस के पूरे ईयर में। टाइम मैनेजमेंट इज द थिंग यू हैव टू फोकस। अभी जो पोस्टिंग्स में आपको होता, आप वो वहीं पे सीख लो। घर आए बाद अगर आपको पोस्टिंग में कुछ भी आपको वर्क दे दिए, 1 आवर में बस आप ये टाइमर ये सेट कर लो कि 1 आवर में मेरे को बस फिनिश करना है, और रेस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टू सोली डेडिकेटेड टू ऑल 3 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट थिंग्स मैं जो बोल रहा हूँ, बीट मी या फिर शबनम रहने दे, फरीहा रहने दे, सैफुद्दीन रहने दे, जो भी बोल रहे, इट्स नॉट जस्ट बेस्ड अपॉन नॉलेज, ये एक्सपीरियंस के भी तहत हम बोल रहे। लाइक अगर अपन सेकेंड ईयर में है तो आवर मेन सोल एम इज कि हम नॉलेज गेन करें। नाउ वी आर इन फाइनल ईयर, तो वी आर एक्सपीरियंसिंग, लाइक वी आर शेयरिंग आवर नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस टू यू ऑल। सो अब जो जो इंटेंशन से आप ये सेशंस को सुन रहे, बीट मोटिवेटेड, आप मोटिवेटेड रहो और इस चीज को इंटरेस्ट के तरीके से सुनो। आप अगर नोट कर रहे, दैट्स अ गुड थिंग, अदरवाइज पीपीटी तो आपको शेयर करके है, इंशाल्लाह से आपको इससे बेनिफिट हो जाएंगे। नेक्स्ट पैथोलॉजी के बारे में मैं बोलूंगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ऑफ द सेकेंड ईयर। आपको अगर फार्मा में रहते, माइक्रो में रहते, अगर इंटरेस्ट नहीं आया, अगर आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको इंटरेस्ट जगेगा जरूर इंशाल्लाह से। सो पहले तो देखिए, ये एक लोगों के दिल में डर है बहुत ज्यादा कि पैथो में मोस्टली थोड़े से मतलब पास नहीं होते, चले जाते, बोले, ऐसा डर रहता। बट अगर आप शुरू कर देंगे इंशाल्लाह से, तो इतना भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। लाइक आप खुद ही उसको कॉम्प्लिकेट कर लेते। सो पहले डे 1 से शुरू करो, एवरी सब्जेक्ट को आपको डे 1 से शुरू करो बल्कि बोलते, लेकिन आपके इंटरेस्ट के ऊपर डेवलप लाइक डिपेंड रहता वो कि हाउ यू आर गोइंग टू गिव टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। आपको खुद को चूज करना है कि कौन से सब्जेक्ट को अपने को अच्छे से इंटरेस्ट दे के पूरा अपना लाइक एवरीथिंग पैशनेट होके पढ़ना है, उसको फैसिनेट करना, वो खुद सब्जेक्ट आपको फैसिनेट करना, ये खुद भी आपके अंदर होना चाहिए कि किस तरीके से मेरे को चीज को डेवलप करना है बल्कि। सो आपको तो मालूम है, लाइक मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अभी तो फर्स्ट इंटरनल्स भी इंशाल्लाह से होके होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह से होके होंगे, तो आप लोगों को ये 3 सब्जेक्ट्स के बारे में तो ऑलरेडी नॉलेज है। एनीवे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स जो है आपके मेडिसिन, फाइनल ईयर के मेडिसिन का मेजर बल्क है। मतलब आप अगर फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़ लिए, तो आपको फाइनल ईयर का मेडिसिन विल बी इजी, क्योंकि आपको यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। खाली बस जाके आपको ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पार्ट को आपको सीखना है बस मेडिसिन में जाके। तो अभी जो है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये कि अभी मैं आपको जैसा कि बोली कि पोस्टिंग्स को अगर आपको टाइम दे देना है, आप फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स पोस्टिंग के फिर घर आके पढ़ रहे, तो वो चीज गलत है। क्योंकि आपको फाइनल ईयर के सब्जेक्ट तो फाइनल ईयर में पढ़ना ही है, लेकिन अब जो आपको टाइम मिल रहा, यू हैव टू गिव टू ऑल द 3 सब्जेक्ट्स लाइक पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट्स के साथ आपको इंसाफ करना है, पहली चीज। नेक्स्ट स्लाइड। कमिंग टू द इम्पोर्टेंस एंड अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। इम्पोर्टेंस तो ये है कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पास करने के लिए और आपका बेसिक्स, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू हैव टू रीड पैथोलॉजी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एज ए सेट के मेडिसिन का बल्क पार्ट है। आपको जो कुछ भी नहीं मालूम है, पैथोलॉजी से बहुत बहुत ज्यादा चीजें आप सीख लेते। बीट लाइक सेल इंजुरी से रहने, अडेप्टेशंस, न्यूप्लीजिया, नेक्रोसिस वाला पार्ट, एवरीथिंग, शॉक से लेके हीमोडायनेमिक्स, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न। हेमेटोलॉजी वाला पार्ट बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली आप लर्न करते। नाउ कमिंग टू द like how to approach towards the subject. First things first, I wanted to tell you that कि आपका जो source है, like whichever the source you are choosing, you have to be clear with the source. Like अगर आप ये सोच रहे कि I'm not going to buy any of the platform, I'm not going to take subscription from any of the platform, अगर आपको नहीं लेना है, you are solely dependent on only the textbook, so be with it. आप क्लियर रहो कि मेरे को शुरू से टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है। अगर टेक्स्ट बुक में भी आपको क्लैरिटी लेके आ लेना है, तो आप लाइक हर चीज को देख के आप क्लियर करो। वॉइस का कोई इश्यू है क्या? एम आई क्लियर, एम आई ऑडिबल? फरीहा? Yes, I say yes. Yeah, you can go ahead. या
शेख, आप जो भी हैं, आपके पास से आपको आई थिंक नेटवर्क इशू है, आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, तो आप मैं एज आई वाज टेलिंग कि आपको एक सोर्स के साथ क्लैरिटी लेके आना है। आप कुछ भी प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, बी विद इट। आप मैरो यूज कर रहे हैं, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करो कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इट। आगे जाके आपके प्लेटफॉर्म बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट, बेस्ड अपॉन लाइक कौन से चैप्टर को कौन से टीचर अच्छा पढ़ा है, उसके चॉइसेस पे आप चेंज कर ले सकते होंगे। लेकिन जब इनिशियली यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस थिंग, तो आप एक कोई भी मामूली सा प्लेटफॉर्म रहने, लाइक कुछ भी प्लेटफॉर्म रहने, उससे आप शुरू करो। लेटर ऑन ग्रेजुअली आप इंटरेस्ट डेवलप करते, ग्रेजुअली आपको सोर्स कौन सा बेटर है आपको मालूम होता है वो चीज। सो आप फर्स्ट थिंग क्या है कि आपका रिसोर्स जो है, आपका सोर्स, आप उसके लिए क्लैरिटी लेके आ लो। नेक्स्ट, हाउ आई एडवाइस इज कि ऑल द वीडियोस यू हैव टू वॉच एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। आई रियली वांट टाइम के लिए, तो फिल वक्त तो आई सजेस्ट यू टू प्रिपेयर योर हार्ड कॉपी नोट्स। लाइक आप खुद ही हैंड रिटन नोट्स बनाओ। अदरवाइज अगर लाइक यू आर नॉट अ राइटिंग पर्सन, आपको उतना नहीं है, लिखना नहीं पसंद है, एंड यू आर लाइक कि नहीं, इससे मेरा टाइम वेस्ट होता, लाइक कुछ भी आप करो आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होता। लाइक आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होने वाला है। सो इफ यू वांटेड टू टेक हार्ड कॉपी नोट्स, इट विल ऑल्सो सफाइस टू सेव योर टाइम। बट वन शुड लाइक अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप जो हार्ड कॉपी नोट्स फॉलो कर रहे हैं, यू शुड एनोटेट एंड प्रैक्टिस डायग्राम्स वेर एवर नेसेसरी। ये काम करो। लाइक आपके पास राइटिंग भी रहना, राइटिंग वाला पार्ट भी रहना व्हेन यू आर फॉलोइंग हार्ड कॉपी नोट्स। ओके, सो आपके जो सब्जेक्ट के, पैथोलॉजी सब्जेक्ट के 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। लाइक जनरल पैथोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है और सिस्टमिक पैथोलॉजी है। इसके बारे में अपन एक्सटेंसिवली डील करेंगे। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक्स टू फॉलो। नेक्स्ट स्लाइड। टेक्स्ट बुक्स टू फॉलो। फर्स्ट मोस्ट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो है, मोस्ट स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड एंड रिकमेंडेड बुक जो है, वो रॉबिन्स है। इसकी खासियत ये है कि आपके पूरे कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड होते हैं। आपको एक बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज आती है इससे। आपके लाइक अंडरस्टैंडिंग स्किल्स आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं इससे। और ये जो है आपके पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है बुक। ओके, आपके पीजी एंट्रेंस के लिए, कुछ भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, इवन आप जो इससे नॉलेज भी हासिल करते हैं, लाइक बेसिक कंसेप्ट्स को आप जो क्लियर करते हैं, दैट विल हेल्प यू टू लाइक अंडरस्टैंड अदर पार्ट्स, लाइक अदर सब्जेक्ट्स इन योर सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो लाइक कुछ भी बुक भी आप नहीं पढ़े, रॉबिन्स पढ़ना इज मस्ट। इफ यू आर न्यू टू एनी ऑफ दी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, फर्स्ट ईयर में भी आप गाइड एंड हॉल कुछ भी नहीं पढ़े, आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़े, बट स्टिल आई सजेस्ट यू कि सेकेंड ईयर में आप आके पैथोलॉजी किसी भी हाल में रॉबिन्स से ही पढ़ो। एक इनिशियल डेज में आपको थोड़ा सा टफ दिखेगा ये चीज की, लाइक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही बोल के, बट स्टिल ग्रेजुअली जिस तरीके से आप when you start completing like one of the chapter, second chapter, third chapter, तो आपके लिए easy हो जाएंगी ये चीज। लाइक बहुत easy हो जाएंगी ये चीज और कंफर्टेबली आप पढ़ ले सकते। कॉन्स ऑफ द टेक्स्ट बुक क्या है? यूनिवर्सिटी एग्जाम लाइक पेपर में जो आपको प्रेजेंट करना है, ये आप बेस्ड अपॉन होली सोली रीडिंग दिस बुक यू कैन नॉट डू। लाइक यू माइट फेस डिफिकल्टी। सो व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप जब रॉबिन्स पढ़ रहे, यू हैव टू सप्लीमेंट दिस बुक विथ योर नोट्स। लाइक आपको किस तरीके से इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप सीआर ले लिए या फिर कुछ भी, आप जो भी क्वेश्चन बैंक आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करके वही चैप्टर्स, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रॉबिन से पढ़ने के पहले ट्राई करो, वही करो। क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहता, आपको फार्माकोलॉजी को भी पढ़ना है, फिर माइक्रोबायोलॉजी को भी पढ़ना है, वो भी बल्कि सब्जेक्ट है। सो पूरी रॉबिन्स आप नहीं पढ़ सकते, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पहले आप टिक करो, उसी को आप किस तरह से यू आर गोइंग टू प्रेजेंट ऑन योर इन योर लाइक यूनिवर्सिटी पेपर, यू हैव टू मेक नोट्स फॉर दैट। सो इसी को आप फॉलो करना है। क्यों? और एट द लाइक आपका जो ये जो नोट्स रहती बिफोर यूनिवर्सिटी एग्जाम, एक रिविजन टूल रहती है आपके लिए। तो you need not to hurry to you need not to rush to read this Robbins again and again. आपको उतना टाइम भी नहीं रहता, आपको समझ में नहीं आता एट द एंड कि मैं क्या पढूं क्या छोड़ूं। सो I suggest you, while you're reading Robbins, you have to make your own notes.
जिस तरीके से आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो इसके तो कॉन्स आपको मालूम है कि आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगने वाले हैं इसको पढ़ने के लिए, इट इज गोइंग टू कंज्यूम योर टाइम एंड यू कैन be able to represent, like you might face difficulty in presenting your paper. Next, coming to the other books, you will be having Harsh Mohan, Ramdas Nayak and Pathoma textbook. Next books, next slide please. Harsh Mohan जो है, most of the people they suggest this, but I personally don't recommend this book. मैं इसके मतलब negative points तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, but still अगर आप लेके हैं तो you can go with it, comfortably go with it. What I tell you that what I have done is पैथोलॉजी में रॉबिन्स पढ़ने के साथ साथ यू कैन नॉट एबल टू रेप्लीकेट द डायग्राम्स। आप पैथोलॉजी रॉबिन्स में जो डायग्राम्स है उसको आप एग्जाम पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते, वो एकदम पिक्टोरियल 3D व्यू में ऐसे रहते डायग्राम्स, तो आप उसको नहीं ड्रॉ कर सकते। तो व्हाट आई हैव डन इज कि हर्ष मोहन से जो भी रेप्लीकेट कर सकते हैं डायग्राम्स उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके वो सीख लेते हैं एंड आई हैव रिटन लाइक आई हैव ड्रॉन इन माय नोट्स, तो उससे आप आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छी कर ले सकते हैं। सो आई हैव रिफर्ड दिस सोली फॉर डायग्राम्स। नेक्स्ट इज रामदास नायक, बेस्ट बुक फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। हियर एंड देयर थोड़े बहुत मिस्टेक्स रहते एंड आई थिंक कि नेक्स्ट एडिशन में जो है उन्होंने उसको भी क्लियर कर लिए होंगे। सो रामदास नायक जो है आपको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करके है बुक, और व्हाट आई हैव डन इज या व्हाट आई हैव डन इज कि रामदास नायक में लाइक आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस को आप अगर रेफर कर रहे आपको थोड़े से टॉपिक्स ऐसे दिखते हैं कि द कंटेंट इज नॉट सफिशिएंट टू फिल योर पेपर। लाइक अगर आप रॉबिन्स भी पढ़ लिए तो आपको ऐसे दिखता है कि द कंटेंट विच इज गिवन इज नॉट सफिशिएंट फॉर माई पेपर। लाइक आपको एक फुल पेपर को फिल करना है और बस कंटेंट सिर्फ हाफ ही पेपर का है, तो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गो फॉर द रामदास नायक और एनी ऑफ द स्मार्ट टेक्स्ट बुक, लाइक स्मार्ट के जो बुक्स रहते हैं पैथोलॉजी के लिए, स्पेसिफिकली फॉर पैथोलॉजी आप उसको रिफर कर ले सकते हैं। देन इट इज इजी टू गो फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम। पैथोमा टेक्स्ट बुक तो उनके लिए है जो पैथोमा के लेक्चर्स को रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट, दीज आर फ्यू ऑफ द रिव्यू बुक्स। ये जो रिव्यू बुक्स हैं लाइक अगर आप रॉबिन्स पढ़ रहे हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी। रिव्यू बुक्स स्पेशली ये जो है रिव्यू बुक्स जो है स्पेशली आप अगर रॉबिन्स से थरो है एंड इफ यू आर अपियरिंग फॉर द पीजी एंट्रेंस एग्जाम और आपको रिविजन करना है तो आप पूरी रॉबिन्स खोल के फिर से नहीं पढ़ सकते, स्पेशली आप अगर नोट्स नहीं बना के है। तो दिस रिव्यू बुक्स में जो है आपको स्पेसिफिक छोटे छोटे थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वाले पार्ट्स वगैरह ये सब देखे हैं विद द पीवाईक्यूज, तो आप जब इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड टू डेवलप इंटरेस्ट ऑल्सो यू कैन अप्रोच। नेक्स्ट वन अनदर बुक विच आई रियली वांटेड टू सजेस्ट फॉर हेमाटोलॉजी, कौथालकर, ये पीजी ओरिएंटेड बुक है और बहुत द होल बुक इज डेडिकेटेड टू हेमाटोलॉजी। बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज है इसमें, बट आप उसको वॉट एवर इज रिक्वायर्ड यू कैन टेक फ्रॉम दैट, बट आई डू नॉट सजेस्ट अगर आप लाइक नहीं पढ़ सक रहे, लाइक रॉबिन्स पढ़ के इसको नहीं पढ़ सक रहे और पूरा टाइम इसको नहीं दे सकते, तो आप जो भी सोर्स फॉलो करते, आई टेल यू रिगार्डिंग द सोर्सेस, आप जो भी सोर्स आप फॉलो करते उसके नोट्स इज एनफ फॉर राइटिंग योर पैथोलॉजी का हेमाटोलॉजी पार्ट. So you need not to refer any of the other book for the hematology, I want to say. Next is video sources. Coming to the video sources, Pathoma जो है, next slide please. Pathoma जो है, it's a like foreign resource for pathology है, और जो भी Pathoma सर के जो वीडियोस देखते हैं उन्हें उसको फॉलो कर लेते हैं। नेक्स्ट, मैंने जो स्लाइड में है ना ऑल द लेक्चर्स जिनके बारे में मैं लिखी हूँ उनके स्पेसिफिसिटीज को लिखी हूँ। और फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू क्लियर कि जो भी इंडियन वीडियो रिसोर्सेस है दे आर इक्वली गुड, डिपेंड्स ऑन वंस ओन स्टाइल ऑफ लर्निंग। सो आई सजेस्ट कि आपके लिए जो भी बेहतर दिखता है आपकी वे ऑफ लर्निंग पे, वेदर यू आर अ स्लो लर्नर और अ फास्ट लर्नर, बेस्ड अपॉन योर वे ऑफ लर्निंग आप कुछ भी आप चूज कर सकते। मैं यहाँ पे जो है लेक्चर्स की स्पेसिफिसिटीज के बारे में बोल रहा हूँ। डॉक्टर प्रीति शर्मा फ्रॉम ट्रिपलैडर, उन्होंने जो है आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग देते हैं और आपका इंटरेस्ट इन लाइक पैथोलॉजी आप उन्होंने डेवलप करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट निमोनिक, शॉर्ट एंड स्वीट बोल देते बस, और लाइक रेडी टू गो फॉर पैथोलॉजी है नो, बेस्ट ट्रिक्स दे देते आपको। नेक्स्ट, डॉक्टर स्पर्श गुप्ता फ्रॉम पैथोलॉजी, ह्यूज कंटेंट देते सर। सर इज लाइक बहुत ज्यादा नॉलेज देते उन्होंने एंड ही ऑल्सो इंटीग्रेटेड टू द मेडिसिन एंड मेडिसिन पार्ट, बट लेकिन आई स्पेसिफिकली पर्सनली आई डिडंट फॉलो, क्योंकि सर का लाइक
कैसा है कि आप 1x पे भी देखो तो आप 2x पे देख रहे जैसा नजर आता, लाइक यू हैव टू रिवाइंड और फिर से लिसन करना पड़ता। सो आई लाइक मैं उसको फॉलो ही नहीं करी। सो ह्यूज कंटेंट देते, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेल कवर्ड फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम, एंड इट्स लाइक बेस्ट फॉर द पीजी प्रिपरेशन, और एक्सटेंसिव नॉलेज देते स्पर्श गुप्ता सर। Coming to Dr. Ranjit sir, now he's available on PW platform. Sir teaches the basics very well. Try to watch if you really want to know the correct way of reading Robbins. Sir कैसा बोलते बोले तो रंजीत सर इज आपको एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस आपको बोलेंगे सर। लाइक he'll basically tell you what to focus on Robbins and what to blur off, कि आपको क्या फोकस करना है रॉबिन्स से। एवरीथिंग नॉवेल जैसा आपको पढ़ना नहीं है, उसमें आपको क्या क्या जरूरी है, आपको किस किस को नोट करना है, ये सर बोलेंगे आपको। लाइक whenever I suggest to the people those are new to the standard books अब तक भी नहीं पढ़े and they are like they wanted to read Robbins, तब आप रंजीत सर के पास लाइक बेसिक लाइक हाउ टू रीड रॉबिन्स आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू डॉक्टर प्रवीण गुप्ता सर। सर जो है ई गुरुकुल डीबीएम से ऐप पे है। सो यू कैन फॉलो हिम फॉर फ्यू टॉपिक्स लाइक जनरल पैथोलॉजी में आई टेल यू, उन्होंने हर चीज को अच्छी तरह से डिफरेंशिएट करके कैटेगराइज करके बोले। एग्जाम्पल अपन अगर नेक्रोसिस वाले पार्ट्स पढ़ते तो नेक्रोसिस को पूरे टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस को अच्छी तरीके से उन्होंने कैटेगराइज करके विद डायग्राम उन्होंने बताया सो है। लाइक जनरल पैथोलॉजी में फर्स्ट आप जब भी पैथोलॉजी शुरू करते तो आप जनरल पैथोलॉजी से स्टार्ट करते, तो जनरल पैथोलॉजी से आपको इंटरेस्ट डेवलप करने की उन्होंने कोशिश करे सो है। लाइक कुछ भी डायग्राम्स आप रॉबिन से नहीं रेप्लिकेट कर सक रहे आपके पेपर में, तो उन्होंने जनरल पैथोलॉजी से ही शुरू करके डायग्राम्स को अच्छी तरीके से ड्रॉ करके दीज आर द स्पेसिफिसिटीज, दीज आर द फीचर्स, बस सब कुछ करके बोले सो अच्छी तरीके से कैटेगराइज करके लाइक कैल्सिफिकेशन के टाइप, डिस्ट्रोफिक मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट करके है। तो अगर आप जनरल पैथोलॉजी से आप शुरू कर रहे तो इट्स गुड। अगर समझिए कि फाइनल तक आते आते भी आप सिस्टमिक पैथोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड वाले पार्ट को भी अगर कंप्लीट नहीं कर सके तो सिस्टमिक पैथोलॉजी के भी फ्यू वीडियोस आप सर के वॉच करके you can like ready to go for the exams। अगर आप वीडियो से तो थोड़े शॉर्ट रहते और अच्छी तरीके से आप एग्जाम में किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है वो थोड़ी चीजें उन्होंने अच्छे तरीके से बोल सकते। तो प्रवीण गुप्ता सर का आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आई रियली वांटेड टू एम्फसाइज ऑन हेमाटोलॉजी देवेश मिश्रा सर। देवेश मिश्रा सर का देखिए अलग से ऐप है और उनके पायरेटेड वीडियोस भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाते। तो देवेश मिश्रा सर का हेमाटोलॉजी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया सो है। सर का जो है ना फर्स्ट में जैसे ही वीडियो स्टार्ट करते ना तो ही विल ड्रॉ the flow charts and he'll categorize what all the topics we are going to read and the sequence to be followed and helps in easy recall। तो अभी सर को किस तरीके से फॉलो करना है, फर्स्ट व्हाट आई रिकमेंड इज कि आपको सर के पूरे वीडियोस वॉच करना है। लाइक व्हेनेवर यू स्टार्ट अ वीडियो शुरू करते ही साथ ही आपको उनके हर चीज उन्होंने जो व्हाट ऑल ही इज राइटिंग यू हैव टू राइट। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज हेमाटोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली हेमाटोलॉजी के लिए ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम एज सर टीचर्स। एक कुछ भी अगर उन्होंने बोल रहे तो व्हाट यू हैव टू डू हेमाटोलॉजी वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, स्लाइड ड्रॉ करना है आपको, HNE वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है एंड यू हैव टू राइट द स्पेसिफिसिटीज ऑफ द स्लाइड। व्हाट डज इट मीन स्पेसिफिसिटीज ऑफ दिस स्लाइड, मतलब क्या। अगर आप समझिए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में उन्होंने बोल रहे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के आपको स्लाइड दिखाए तो उसमें स्पेसिफिसिटीज क्या रहते हैं आपको, बेसोफिलिक स्टेपलिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स रहते हैं उसके। तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग आपको नजर आती, न्यूट्रोफिलिक सेगमेंटेशन नजर आता, ये सारी चीजों को आपको साइड में लिख लेना है, उसको एरो मार्क देके लेबल करके रख लेना है और उसके बारे में लिखना है। हाँ यस, होल जॉली बॉडीज एंड ऑल, ये सारी चीजों को आपको लिखना है। सिमिलरली अगर मल्टीपल माइलोमा अगर आप पढ़ रहे तो रसल बॉडीज, डशर बॉडीज, ये सारी चीजों को ड्रॉ करके उसको अच्छी तरीके से लेबल करके रखना है। देन अगर आपको टाइम है तो आप रॉबिन्स पढ़ो एंड आई डोंट थिंक कि पूरे वीडियोस वॉच करके नोट्स बनाए तक आपको रॉबिन्स पढ़ने का टाइम रहता। तो कुछ भी आप लाइक स्मार्ट के नोट्स ले लो या फिर रामदास नायक में से जो भी मिसिंग हो गया सो है वो एक बार रीडिंग दे दो या फिर रीडिंग दे के आपके नोट्स में आप लिख लो। एंड नेक्स्ट इज यू हैव टू प्रैक्टिस एंड रिवाइज, ठीक है। तो देवेश मिश्रा सर का आपको इस तरीके से फॉलो करना है। तो आपका हेमाटोलॉजी जो है फर्स्ट पेपर का हाफ कंटेंट फॉर्म करता है। लाइक आपको फर्स्ट पेपर में तो जनरल पैथोलॉजी रहता है, साथ में आपको हेमाटोलॉजी भी रहता, तो हेमाटोलॉजी इज ऑल्सो अ क्रूशियल पार्ट। तो आपको HNE डायग्राम्स तो ड्रॉ करना ही है, आपको आधे मार्क्स तो हेमाटोलॉजी में HNE डायग्राम से जाते। तो आप
हर वो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स जो भी स्लाइड में दिख रहा उसको आप डालना जरूरी है। अगर सिकल सेल एनीमिया है तो आपको सिकलिंग ऑफ द आरबीसी से सारी चीजें आपको बताना जरूरी है। नेक्स्ट इज डॉक्टर ईला जैन खंडेलवाल मैरो। मैं तो पर्सनली नहीं फॉलो करके हूँ उसको, बट अगर स्टिल अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, वांटेड टू लाइक आपको टेस्ट करना है आपकी नॉलेज, आप जितना भी कवर करें तो यू कैन सॉल्व मॉड्यूल्स। नेक्स्ट इज प्रियंका सचदेव मैम। मैम जो है यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा के हैं। सपोज एट द एंड अगर आपके पास थोड़े से टॉपिक्स मिसिंग है, अगर आप नहीं करे उसको कवर नहीं कर सके, तो उनके रैपिड रिवीजन के 2 वीडियोस ऐसा रहते, एक जनरल पैथोलॉजी का रहता और एक सिस्टमिक पैथोलॉजी का रहता। एक मतलब 3 आवर्स अगर आप स्पेयर करते हैं उसको, लाइक टाइम दे दिए 3 आवर्स तो आपको कंप्लीट होता है वो चीज। तो एक बार आप यूनिवर्सिटी के लिए आप देख सकते हैं प्रियंका सचदेव के मैम वीडियोस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। माय पर्सनल सजेशन इज, अगर आप रॉबिन्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं रंजीत सर से पढ़ो। अगर नहीं है, सोर्स नहीं भी है, तो आई एम टेलिंग यू मतलब क्या है ये ऐसा, ये अंदर फोमो मत रखो कि अरे नहीं उन्होंने ये फॉलो कर रहे ना, मैं ये क्यों फॉलो करूं। जो भी आप प्लेटफॉर्म ले रहे आप उससे पहले कंफर्टेबल हो जाओ और पूरा ट्रस्ट डेडिकेट करो उस पर कि अरे हाँ मैं जो भी सर से पढ़ रहा हूँ या जो भी मैम से पढ़ रहा हूँ दैट इज एनफ फॉर मी। आपको स्टार्ट करने के लिए तो एनफ है, इंटरेस्ट तो खुद ब खुद अल्लाह चाहे तो आ जाता वो चीज, ठीक है। तो डॉक्टर रंजीत से आप, ये तो बस मेरा सजेशन है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको पूरी तरीके से फॉलो करो, ओके। तो रंजीत सर के आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक रॉबिन्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उनके वीडियोस देखना है। नेक्स्ट देवेश मिश्रा एज अ सेट फॉर हेमेटोलॉजी, और प्रवीण गुप्ता सर के मैं बोली कि थोड़े पॉइंट्स मतलब जनरल पैथोलॉजी बेटर डिफरेंशिएशन और आपको सब मिल जाएगा, और सिस्टमिक पैथोलॉजी में थोड़ा पार्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए स्पेसिफिक अगर आप प्लेटफॉर्म लेके है तो आप उसके मॉड्यूल्स को सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको पीवाईक्यूज वगैरह करना है तो आप जैसे कि रिव्यू प्रीवियस स्लाइड्स में देखे था तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिविजन। रिविजन इज द की टू ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, फार्माकोलॉजी रहने बीट माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी। तो रिविजन जो है इट्स लाइक it's really very important for every subject, but all the subjects, okay. The first step is what you have to be ready with the notes. आपके हार्ड कॉपी नोट्स रहने, आपके खुद हैंडमेड नोट्स रहने, यू हैव टू बी रेडी विद द नोट्स फ्रॉम वेयर यू वांट टू रिवाइज, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट कि आप जब भी पढ़ रहे हैं पहली चीज तो आपके नोट्स में आप एचएनई डायग्राम्स डाल के हैं। नेक्स्ट जब आप नोट्स को रिवाइज करते आप एक पेपर ले लेना और एचएनई डायग्राम्स को जस्ट रफली ड्रॉ करो। आपको जरूरी नहीं है आपकी क्या स्किल्स दिखाने की कि किस तरीके से आप मास्टर करके डायग्राम्स में। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस यानी कि जस्ट रफ डाल दो आप, लेकिन आपको आइडिया रहना कि उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स क्या है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू ड्रॉ फ्लो फॉर द पैथोजेनेसिस। पैथोलॉजी जो है तो पैथोजेनेसिस को आप ट्राई टू राइट इन अ फ्लो चार्ट मैनर। एग्जामिनर को आप इजी रखो आंसर, लेकिन आप पेज पूरा भर दो नको, आप बस अच्छी स्पेस दो, स्पेशियस लिखो और कैची पॉइंट्स लिखो और फ्लो चार्ट मैनर में लिखे तो दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू इन ऑर्डर टू फेच मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट what you have to do is make a question answer book for the most important of referring previous year important question. As I said कि जब भी आप रॉबिन्स पढ़ रहे आपके पास पूरा टाइम नहीं रहता पूरा डेडिकेट करके रॉबिन्स को पढ़ने के लिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले टिक कर लो, उसी के आप नोट्स बनाओ क्वेश्चन आंसर बुक, ठीक है। ऑल्सो फोकस ऑन ग्रॉस एनाटॉमिकल डायग्राम्स ऑफ विजरा एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी। एज आई सेड की एचएनई यानी कि आप माइक्रोस्कोपिक डायग्राम्स तो आप डालते, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू ड्रॉ ग्रॉस एनाटॉमिकल डायग्राम्स। व्हाट डज इट मीन, मतलब अगर समझो अगर आपको कुछ भी लिवर के नोड्यूल्स के बारे में, कुछ भी अगर हेपेटाइटिस के बारे में ऐसा कुछ भी आपको क्वेश्चन आ गया, स्पेसिफिकली आपको ये चीज मालूम है ना कि कौन से ऑर्गन्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको अगर मालूम हो गया तो ग्रॉस डायग्राम में आप क्या ड्रॉ करते हैं, एक लीवर ड्रॉ कर लो, बस लीवर ड्रॉ करके उसके ऊपर जस्ट नोड्यूल्स बना लो। मतलब क्या है ग्रॉस एनाटॉमिकल डायग्राम बल्कि मेंशन करो वो सबहेडिंग आने के लिए वो डायग्राम आना जरूरी है। कुछ भी पहले तो ये देख लो कि क्वेश्चन जो है वो कौन से ऑर्गन में से पूछा, वो ऑर्गन का जो रिलेटेबल डायग्राम है वो आप ड्रॉ कर दो। दैट लाइक वो जो है दैट इज एनफ फॉर योर ग्रॉस एनाटॉमिकल डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ड्राइंग स्लाइड्स। एज आई सेड उसी के ऊपर मैं एम्फसाइज करूँ थी हेमेटोलॉजी में भी कि आपको एचएनई डायग्राम्स ड्रॉ करते ही रहना है। रिवाइज बेस्ड अपॉन ओन कन्वीनियंट टाइम टेबल, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंड ईयर लाइक पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेबस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके
फर्स्ट पेपर में जो है जनरल पैथोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी का था, सेकेंड पेपर 2 में तो देखो पूरा सिस्टमिक रहता। तो बेस्ड अपॉन योर क्वेश्चन बैंक्स आप उसको रिफर कर सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और मैं बोल रहा हूँ जनरल पैथोलॉजी में जब आप ओपन करते रॉबिन्स तो लाइन से आपको सीक्वेंस वाइज 10 चैप्टर्स ऐसा देखे रहते दिस विच कम्स अंडर जनरल पैथोलॉजी। लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव, वो तो देखो क्या है, सेल इंजरी वाला पार्ट है, इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर है, न्यूप्लेजिया एंड हीमोडायनेमिक्स। ये 4 तो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसकी जो नॉलेज आप जो गेन करते हैं दिस इज लाइक गोइंग टू हेल्प यू इन योर सब्सिक्वेंट ईयर्स, बी इट इन थर्ड ईयर, बी इट इन फाइनल ईयर, जो भी रहते आपको ये 4 जो है आपको बेसिक नॉलेज दे रहे। तो यू हैव टू कंप्लीट जनरल पैथोलॉजी। नेक्स्ट इज हेमाटोलॉजी में बेस्ड अपॉन लाइक आरबीसी डब्ल्यूबीसी के जो भी है, बेस्ड अपॉन योर, अगर आप फॉलो कर रहे क्वेश्चन बैंक उसके बेसिस पे, आपके लेक्चर्स के बेसिस पे, और आप जो भी प्लेटफॉर्म चूज करके आपको बेटर गाइडेंस उससे मिल जा रहा, तो आप लाइक पूरे व्हाट ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि मैं बोली उसको आप टिक करो, उसके आप नोट्स बनाओ और उसको आप लाइक उसी को आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की भी कोशिश करो। अगर आप इंटरनल्स में भी प्रेजेंट कर रहे फ्रॉम द इनिशियल डेज ओनली, आप ट्राई करो कि आप अच्छी तरीके से आंसर लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू अप्रोच लाइक एग्जाम ओरिएंटेशन, आपको किस तरह से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको कवर करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम इज इंपॉर्टेंट। पहले तो देखो किस तरह से प्रेजेंटेशन करते, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बेस्ड अपॉन व्हाट हैव बीन आस्क्ड। इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, इंट्रोडक्शन अगर नहीं, डेफिनेशन उसका लिखना है, उसके हिसाब से लिखो। नेक्स्ट देखो आपका ये पूरे जो है सबहेडिंग्स है, आपको किस तरह से आंसर प्रेजेंट करने में किस तरह से हेल्पफुल रहते, आप उसको यूज कर लो, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन कुछ भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एटियोलॉजी, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, जो भी है आपको बेस्ड अपॉन योर आंसर लिखना है। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस, एज आई सेड आई अगेन एम्फसाइज ऑन दिस पार्ट कि पैथोजेनेसिस अगर Aisha, are you there? यस यस हाँ, एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए एज आई एम टेलिंग, एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible. तो एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो आपको फॉलो करना ही है। प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर जो है यूनिवर्सिटी पेपर में किस तरह से करना है, बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट आप इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है इटियोलॉजी आपको मेंशन करना है। पैथोजेनेसिस पे अभी मैं एक और बार फोकस कर रहा हूँ कि पैथोजेनेसिस पे यू हैव टू मेक फ्लो चार्ट या फिर टैबुलर कॉलम या जो भी आपको नेसेसरी दिख रहा है उस चीज के लिए। डायग्राम्स जितने हो सके उतने डालने की आप कोशिश करो, बिकॉज डायग्राम इज लाइक कि आपको आप खुद ही मार्क्स को अपने वो डायग्राम से आप मार्क्स को अपनी तरफ बुला रहे, उतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स, एज ए ऑल्सो एम्फोसाइज्ड ऑन ग्रॉस एनाटॉमिकल डायग्राम। तो मॉर्फोलॉजी में देखो 2 भी आते, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी आती और हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम भी आता। तो ग्रॉस भी ड्रॉ करना है और हिस्टोपैथोलॉजी भी ड्रॉ करना है। एज ए सेट ग्रॉस में आपको क्या, अब देखो अगर कुछ भी अगर जो भी आप क्वेश्चन है उससे आप ये देखो कौन से सिस्टम से रिलेटेड है। जीआईटी से अगर समझो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा आपको पूछ लिया तो आप ग्रॉस में क्या डालते थे, बस एक जीआईटी का कोलोन और रेक्टल वाला पार्ट आप ड्रॉ कर देंगे, कुछ भी तलाविंग उसमें डाल दो, एक ग्रॉस वाला पार्ट तो ड्रॉ करो, ठीक है। नेक्स्ट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम एंड लास्ट पार्ट इज मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट उसमें आता, व्हाट ऑल इज रिटन, आप जो भी वे में आप उसको पढ़ रहे हैं यू हैव टू मेंशन दैट, ओके। नेक्स्ट, आप क्लैरिटी रखो, क्लासिफिकेशंस लिखने की कोशिश करो। एक एग्जांपल, अगर आप ल्यूकीमियास पढ़ रहे हैं तो आपको क्लासिफिकेशन रहता, डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन रहता, ल्यूकीमियास रहते, एएमएल रहते, एलएल रहते, ये सारी चीजों को कैटेगराइज करके अच्छे तरह से रहता। तो यू हैव टू like draw that like you have to mention all the classifications part. नेक्स्ट फ्लो चार्ट्स में जैसे करोबल के बोली थी वो फ्लो चार्ट्स करो। नेक्स्ट इज ग्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर्स, जो भी ट्यूमर्स है उसकी ग्रेडिंग और इंसिडेंस एंड ऑल भी, वो भी आप अगर लिखे तो वो भी बहुत अच्छी तरह से वो भी बहुत अच्छा रहता है। लाइक लंग रॉबिन्स में जो है वो इंटरनेशनल डिजीज पे ज्यादा वो लोग फोकस करते, लंग्स लंग लाइक लंग कार्सिनोमाज एंड ऑल, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ये सारी चीजों पे आप अगर इंसिडेंस भी डाले तो वो भी बहुत लाइक अट्रैक्टिव रहता एग्जाम पेपर के लिए।
हाँ, माइक्रोस्कोपिक और हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम तो भी सेम है। लाइक व्हाट आई वांटेड टू टेल, और माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी आप ड्रॉ करो। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी से मतलब ये है कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, लाइक जो भी ऑर्गन है उसको आप आपके क्वेश्चन को लाइक मैच हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ये ऑर्गन सिस्टम से आपको ये विजरा से आपको रिलेटेड है, लाइक लिवर के बेसिस पे का क्वेश्चन है तो लिवर को ड्रॉ करो, दैट इज ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी यानी कि हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड, आपको जो दिख रहा माइक्रोस्कोप में, यू हैव टू ड्रॉ दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज टेबल्स आपको फॉलो करना है, नहीं टेबल आपको ड्रॉ करना है, अगर वेर एवर नेसेसरी आपको डालना है, डिफरेंशिएशन वेर एवर नेसेसरी यू हैव टू मेंशन, ठीक है। अभी जो है लास्ट वाला पार्ट, एग्जाम एक्सक्लूसिव बुक, पर्सनल नोट जो है इजी टू गो रहते हैं। आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट, मैं खुद भी आपको बोल रहा हूँ कि मैं खुद भी नोट्स बनाती थी, इट्स नॉट अ टफ टास्क। मैं भी 3 सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स बनाई थी, वेदर इट लाइक पीपल से कि माइक्रोबायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है नोट्स, बट स्टिल जहां जहां पे मेरे को नेसेसरी दिखा वहां पे मैं बनाने की कोशिश करी। सो आई टेल यू कि इट्स नॉट अ टफ पार्ट, कि आप 3 भी सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स बना सकते हैं, और फोकस रह के पढ़ना इस तक ही, ठीक है। नेक्स्ट इज रामदास नायक पढ़ो। अगर रॉबिन्स और हर्ष मोहन ओवरवेलमिंग दिख रहा कंटेंट, तो यू कैन गो फॉर रामदास नायक, और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स इजीली पास हो जाते हैं, ठीक है। स्मार्ट नोट्स यू कैन रेफर, लास्ट मिनट बुक है, कुछ भी अगर छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी, या फिर कुछ भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप कवर नहीं कर सके तो यू कैन गो स्मार्ट के नोट्स, इवन आई हैव रेफर्ड, वो भी बहुत अच्छे है, लाइक अमाइलोडोसिस एंड ऑल के लिए आई हैव रेफर्ड दैट, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लाइक एज आई सेड यू, अगर आप वीडियो रिसोर्स को ज्यादा ऑप्ट कर रहे, आपको पढ़ना वगैरह उतना नहीं हो रहा, या फिर वीडियो रिसोर्स आप ज्यादा ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे, यू कैन गो फॉर प्रियंका सचदेव मैम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, ठीक है। इंशाल्लाह इट विल बी बेनिफिशियल, और अल्लाह ताला आपके और मेरे कहने को, या हम सबके कहने को और आपके सुनने को कबूल करे, अल्लाहुम्मा आमीन। अभी आगे जो है फरिया कैन हैंड ओवर टू यू। Thank you, Dr. Aisha Nashin, for sharing a wonderful फरिया, explanation and sharing all your experience. You are to increase knowledge. Rabbi Zidni ilma. Now let's have a detailed discussion of IMSA, who have started this idea of guiding all medicos. Your patience is much appreciated. After that, we will have question and answer session at the end. I would like to call Tahura to have a detailed discussion of IMSA. Assalamu alaikum, everyone. As I have already introduced with what purpose IMSA stands for, now talking about the aims and objectives, we aim to work on 2 domains mainly, focusing on self-transformation of medicos and social welfare. We aim to instill the true sense of responsibility in medicos towards the community and guide them in academics by providing proper guidance for university exams, PG guidance, and promoting research activities. To inculcate Islamic values in our day-to-day life and professional life through mentorship and focus on leadership qualities and ethics. We also plan to conduct literary events like quizzes to make learning happy. Social welfare, we aim to serve the community through activities like health camps and awareness programs. We also aim to guide the youth and society, especially about the importance of higher education at schools and college level. We also aim to encourage the balance between ideologies of Deen and Dunya in Muslim medicos. This is a small glimpse of how IMSA is organized under each committee. Committee on Academics. It's an initiative to gather people having a similar objectives, where we have created a platform for all to help, encourage, and grow together in the field of academics. Here, we integrate the experience of our seniors and guidance from faculty to make our path easy. These are the projects listed under Academics Committee.
for the year 2024 to 2025, namely UG guidance for university exams, IMSA year-wise guidance, PPTs and Zoom sessions, which you are now a part of it, NEET PG guidance, USMLE guidance, where we have created separate groups to connect USMLE aspirants with Step 1 or Step 2 passed students, and also passed out Step 1 or Step 2 students with US doctors. Similar is lab or MRCP community, where we have aimed to connect lab aspirants with UK doctors. We also have interns and doctors community to bridge the gap between interns and practicing doctors, so that interns can learn more about the things they witnessed during their internship period from the practicing doctors themselves, for each particular specialty. Like, this is how it is. These groups are exclusively for IMSA registered members. Talking about Tarbiyat Committee, Tarbiyat or Personality Development. In this domain, we at IMSA aim to inculcate the qualities of communication skills, ethics, leadership, and networking through an Islamic perspective. We would also emphasize on some essential Islamic knowledge that would benefit every medico to become a better version of them, a better Muslim and a better doctor, capable of bringing out change they want to see in the society. These are the activities listed under Tarbiyat Committee, mainly Quranic Study Circle and Personality Development Workshops. Social Service Committee, as medical students, the first thing we are taught is empathy, which forms the basis of this committee. Here we aim to enhance human well-being and alleviate poverty, oppression, and other forms of social injustice. Through our projects, we want to improve a sense of responsibility in us as humans towards humanity. These are the activities listed under Social Service Committee, mainly orphanage visit, madrasa visit, specially abled school visits, health awareness programs, and health camps in collaboration with DARE. We also have a separate creative and designing team. From graphic designing and social media networking, we bring our ideas and make it a reality. Here we unleash our artistic flair and are the minds behind the visuals. From designing pamphlets, certificates, banner, logos, to making captivating intros, we do it all, and we do it creatively. It is a platform for you to set free your artistic creative side and make a difference, one step at a time. We also have a technical team to ensure smooth running of the organizational events. IMSA has been actively working in social welfare since 2020, and this is the timeline of our past projects. Hunger drive done during COVID lockdown. Orphanage visit and health camp. Madrasa visit and health camp. Winter blanket donation drive. World Braille's Day. This was a visit to government blind school. Ramadan ration kit donation drive done in April 2023. This was about summer orphanage drive done in May 2023. UG guidance and orientation session in collaboration with DARE done in November 2023. And recently, we have done 2 projects for the in the month of Ramadan orphanage visit and Ramadan Quranic Study Circle. This was it. Talking about the organizational structure. We have a state level body comprising of 1 president, 2 vice presidents, 2 general secretaries, and 1 treasurer. We also have a supervising body to guide the as mentors to guide the state level body. We also have in charges for each committee. We aim to expand the organization to the grassroots level, that is at college level, district level, and state level. We'll also be assigning district in charges accordingly.
So we are excited to have you all with us at IMSA. You have to register through Google form to become a member of IMSA. What are the benefits of joining IMSA? IMSA aims to provide a platform for academics guidance, self-improvement, social service activities, for networking within medical fraternity, to own your teamwork and leadership skills, to work in an integrative manner with other organizations like DARE, and it's a great opportunity for you to build on your CV. Members will also be provided e-certificates for contributions made during events as volunteers or as organizers, and also appreciation letters from the President Office, IMSA, can be prepared as per request. And we also plan to conduct a state-level felicitation program for all IMSA members. The current core team is working under the presidentship of Mohammad Mirajuddin, Osmania Medical College, 2K19 batch. These are the in charges of each committee. This is the total list of all the managing committee of the current tenure. So, in the halls of healing, where humanity spirit is reborn, come join us, dear Medicos, where compassion thrives and leaders are born. With stethoscopes as our vans and kindness is dawn, together we sculpt stories of resilience, weathering any storm. To conclude with, اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge, godly provision, and acceptable deeds. You will be shared the Google form link so that you all can register. We'll be happy to have you on board, inshallah. Thank you, Dr. Tahura, Vice President IMSA, for your wonderful explanation on details of IMSA. Now we will have question answer session. All your queries related to IMSA and second year subjects will be cleared. You can unmute yourself to ask questions and answers, and or use chat box. Okay, so let's start with first question. How to focus on postings in second year MBBS? I would like to call Dr. Saifuddin to answer this query. Assalamu alaikum. Saifuddin here again. So, inshallah, your queries will be answered just after this little bit of posting guidance. मतलब, it's a lot of difference जब आप लोग first year से second year में गए, तो you have a lot of difference in your timetable, right? You'll get 2 hours or 3 hours of the posting sessions, right? So what is actually postings? मतलब क्या करना रहता भाई जाके? मेरे को पूछे तो मैं बोलता हूँ मैं तो बंक मारा था भाई. But that is the biggest regret I have. So what is postings? ठीक है, MBBS is postings. ठीक है, आप जो कुछ भी पढ़ते, जो कुछ भी सीख रहे ना, you'll get to know in your postings only. ठीक है, आप कॉलेज को जा रहे, we all know कॉलेज में कैसा रहता, वही PPT भगाते, वही वो लोग डिक्टेट करते चल जाते थियरी क्लास में. बट इन पोस्टिंग यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, राइट? ये तो आपको क्या है, वहाँ पे एनवायरनमेंट मालूम होंगे आपको, बिकॉज इवेंचुअली यू आर गोइंग टू एंड अप इन अ हॉस्पिटल व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर, a good doctor, inshallah. So the actual learning which takes place is the posting thing. ठीक है ना? So can everybody tell me आप लोगों की कौन सी पोस्टिंग चल रही? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स आप लोगों की मतलब कौन से डिपार्टमेंट में चल रही है अभी.
SPM, ortho, okay. Good, pediatrics, ENT, general medicine. There you go, general medicine. Nice. All right, you have the PA. Right. That's good. That's pretty good, you know. SPM वालों को तो मैं छेड़ता नहीं भाई, ठीक है? Because you know SPM में क्या होता? टेक्निक, SPM means टेक्निक थिंग, ठीक है? वन थिंग ये है, आप लोग को बाहर जाके क्या है, फैमिली विजिट करना रहता है गवर्नमेंट जाके, या फिर टू गो टू विजिट एनी, क्या बोलते सो, फैक्ट्री थिंग, और डैम या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब जगह लेके जाते। तो मजा आता है उसमें। हम लोग तो बंक मार के जाते थे, लाइक दूसरों की पोस्टिंग रहे तो वी यूज्ड टू गो इन, क्या बोलते, एसपीएम पीपल के साथ, लोगों के साथ जाके फुल टाइम पास करके आते। वी हैव जनरल मेडिसिन, पल्मो, ऑब्सगाइनी, ठीक है, पीडियाट्रिक्स, ओके। ये सब चीजों में आपने क्या करना, आपकी जो थियरी जो है ना, थियरी जो आप पढ़ते हो पूरा, आपको क्या है, क्या पढ़े आप, क्या करें, ये आपको क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करना रहता, ठीक है। मतलब you will actually understand what all theory part you have studied in your क्या बोलते हैं, second year, third year and your क्या बोलते हैं, final year, ठीक है। So posting is also place where you know there is a pure doctor patient interaction, समझे ना, प्योर डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन रहता है, क्या बोलते हैं, ये पोस्टिंग्स में आपको, जस्ट लाइक द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट इंटरेक्ट विथ, मतलब जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में जो रहता है ना, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट अब आप पोस्टिंग्स में जाएंगे आप, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ पोस्टिंग्स, उसमें जाएंगे तो आपको क्या बोलते, सो नॉर्मली कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा विथ चीफ कंप्लेंट्स, ठीक है, राइट। डॉक्टर साहब मेरे को बुखार आ रहा है, डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ दर्द आ रहा है, डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा हो रहा है, डॉक्टर साहब आई एम नॉट एबल टू इट प्रॉपरली, ठीक है ना। तो ये सब कंप्लेंट्स में आएगा, ये सब कंप्लेंट से आएंगे, तो आपको यहाँ पे मालूम होगा कि एक पेशेंट क्या क्या सफर कर सकता है, तो आप उसको लाइव देखेंगे। मतलब जो आप टेक्स्ट बुक में जो आप पढ़ रहे, ठीक है, टेक्स्ट बुक में आप जो पढ़े कि ये कंप्लेंट्स होते हैं ये पर्टिकुलर डिजीज में, तो यू विल विटनेस द सेम थिंग इन पोस्टिंग, और आप उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। व्हेन यू गेट, व्हेन फॉर एग्जांपल, अब आपको कल दसो पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा, तो आप पूछेंगे, कहाँ पे दर्द हो रहा, ठीक है, दर्द किधर है, और फिर आप पूछेंगे कि दर्द कैसा है, आपको दर्द वहीं पे रह रहा या वहां से स्प्रेड हो रहा। नेक्स्ट थिंग इज आप बोलेंगे, और आप ये भी पूछेंगे उनसे कि दर्द कहीं और जा रहा, रेडिएट हो रहा कि कहीं, ठीक है, लाइक इन एम आई, फॉर एग्जाम्पल इन एम आई यू द पेन विल रेडिएट टू लेफ्ट शोल्डर आर्म, ठीक है ना। देन दर्द के साथ और कुछ भी एसोसिएट है क्या बोल के पूछेंगे आप, ठीक है। वन थिंग इज, सो चीफ कंप्लेंट से लेके आप डायग्नोसिस तक का आपका यहाँ पे अच्छा क्या बोलते सेशन रहेगा आपका, ठीक है। देन और वन मोर थिंग इज IX स्टैंड फॉर इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, मतलब क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करते हैं आप एक पर्टिकुलर डिजीज में, वो है, उसका भी एक रफ अंदाजा आ जाता। देन व्हाट ऑल मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड, देन व्हाट ऑल सर्जरीज आर बीइंग डन, ठीक है, ये आपको एक लाइव आपको विटनेस करने मिल जाएंगे अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज ओटी सेशंस, तो अपन क्या है, जबरदस्त स्क्रब डाल के चल जाते हैं ना, तो ओटी सेशन भी विटनेस करने मिलेंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज क्या है, वही, सो राइट, सो आप कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाओ, आपको फर्स्ट दे विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम लोग, हिस्ट्री टेकिंग सिखाएंगे आपको फर्स्ट, ठीक है। तो आप क्या है, हिस्ट्री टेकिंग जब आप सीख लेंगे ना, सो इट इज योर 50% ऑफ द डायग्नोसिस। हिस्ट्री टेकिंग जब आप लेंगे, सो इट विल बी योर 50% ऑफ द डायग्नोसिस, क्योंकि आप उसमें आप वो पेशेंट्स की हिस्ट्री डिटेल में लेंगे, क्या क्या हो रहा, कैसा हो रहा, हर एक चीज़ एक अच्छे फॉर्मेट में मिल जाता आपको, ठीक है। तो पूरा आपको मालूम हो जाता, पेशेंट ये कंप्लेंट्स के साथ आता, ये ऐसा मतलब ये मैनिफेस्टेशन रहेंगे, ये साइंस रहते, सो ये आपको थोड़ा डिटेल में आप क्या तो अटेंड करो क्वेश्चन, तो आपको समझ में आता। तो फर्स्ट थिंग दिल स्टार्ट विद द हिस्ट्री, शुरू के सेशंस में। देन आफ्टर दैट उन लोग आपको क्या है, केस लेने को बोलते हैं, ठीक है। यू टेक द केस,
इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो आपको कहते सो जो हिस्ट्री जो आपको सिखाते वही चीज आपको कहते सो लेना रहता। मतलब वही आपको कहते सो जैसा हिस्ट्री हिस्ट्री में पर्टिकुलर फॉर्मेट्स रहते हैं, लाइक बेसिक हिस्ट्री, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, ये सब चीज़ें पूरे आपको पूछे ना, वही जाके आपको सेम पूछना रहता। तो केस आप जब आप लेंगे तो ये फॉर्मेट में लेना रहता आपको, पूरा डिटेल में केस लेते हैं। इसके और डिटेल्स क्या है, आप अटेंड करो, आपके पोस्टिंग्स अटेंड करो, you'll you know get a good idea, अच्छा सीख ले सकते। देन केस लिए बाद आपको क्या है, वो लोग वो पर्टिकुलर डिजीज के बाद और पर्टिकुलर डिजीज के बारे में और पढ़ाएंगे, उसका प्रोग्रेस कैसा रहेगा। देन उसके बाद क्या है, उसका ट्रीटमेंट, और क्या है उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, उसके क्या क्या ड्रग्स रहते हैं, सब सब कुछ आपको उन लोग ना सिखा देंगे। देन जो रेस्ट और 50% डायग्नोसिस है वो इन्वेस्टिगेशन से आपको समझ आ जाए। ठीक है, दिस इज अ बेसिक अप्रोच, आप लोग कैसा करना है। पोस्टिंग को जाओ, हिस्ट्री लेना पहले सीख लो, शुरू के 3-4 दिन में हिस्ट्री सीख लो, उसके बाद आप लोग केस लियो, रोज एक एक केस बोलेंगे, या फिर 2 दिन में एक केस करो, 3 दिन में एक केस, ऐसा फॉलोअप करते रहो। ठीक है, ये हो गया जो नॉर्मल रूटीन चलेंगे आपका। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल रूटीन आप लोग क्या करो, वर्ड्स में जाओ, केस शीट्स लियो, केस शीट्स ले लिया राइट, तो एक एक ही केस लियो, बस ओनली वन केस। ठीक है, एक केस लियो, वो एक केस को आप क्या करो, फॉलो अप करते रहो। ठीक है, मतलब एक अर्ली केस ले लो आप, केस शीट में लिखा रहता है डायग्नोसिस वहीं पे, लाइक डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट जब शुरू करते हैं तो आप डायग्नोसिस मालूम हो जाते हैं, पर्टिकुलर ये डिजीज है, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर एनीमिया। ठीक है, दिस इज फॉर अगर सर्जरी का केस है तो ये हर्निया का है, और क्या बोलते हैं सो क्या बोलते हैं हाइड्रोसिल का केस है। ठीक है, ऐसा आपको क्या बोलते हैं सो उस केस शीट में लिखा रहेगा डायग्नोसिस। तो नेक्स्ट थिंग इज आप उसको फॉलो अप करते रहो, और उसके बाद सो फॉलो अप करते रहो, उसका प्रोग्रेस मालूम होते रहता आपको, डिजीज का प्रोग्रेस मालूम होते रहता। तो इन दिस वे you'll get to know the natural course of the particular disease. So that's it। अब लास्ट में क्या है बोलते तो आपको एक अच्छी नॉलेज आ जाती कि व्हाट इज हर्निया, फॉर एग्जांपल के तौर पे व्हाट इज हर्निया, हाउ इट प्रोग्रेसेस, और क्या बोलते सो क्या क्या रहता है इसका, क्या बोलते सो प्रोग्रेस का सब। ठीक है, दैट्स इट ऑन द पोस्टिंग पार्ट। Anyone have more queries? You can unmute yourself and ask. If you have any query, so you can unmute yourself, or you can type in the chat box for your query. Before someone asks like gram positive और gram negative में बहुत confusion होता है जनरल माइक्रोबायोलॉजी में, so इसको कैसा पढ़ना है? So my suggestion is जनरल माइक्रो इज ऑल बेसिक्स फॉर सिस्टमिक। जब आप जनरल माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से कर लेंगे तो आपको सिस्टमिक में आसानी होगी। अब शुरू में जनरल माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती कि ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो सही से प्रोनाउंस करने भी नहीं आता आप लोग को, लेकिन जैसा जैसा आप प्रोसीड करेंगे सिस्टमिक में आप रूटीन हो जाते वो वर्ड्स के लिए, तो आपको इजीली हो जाता। तो जब जनरल पढ़ रहे तो आपको पहले ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को अच्छे से क्लासिफाई कर लेना, और उसमें ग्राम पॉजिटिव में कौन से आते हैं लाइक स्टैफोरियस, स्टेप्टोकोकस, उन लोग को, और ग्राम नेगेटिव में लाइक साल्मोनेला, सुडोमोनास, क्लेप्सिला, इन लोग को अच्छे से आप लोग क्लासिफाई कर लेके याद कर लेना। इसका क्या बेनिफिट है बोले तो, अब लाइक अब कुछ भी स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन आया सिस्टमिक में, अब आपको लैब डायग्नोसिस याद नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करते लैब डायग्नोसिस में जब लिखते अगार्स के बारे में, तो अगर उसमें आप मैकॉन्ग के अगार का ऐसे जर्नली मेंशन कर दिए तो वो यूज नहीं रहता ना, क्योंकि मेकॉन्ग की अगर क्या है, एक सेल्टिक मीडिया है जो लैक्टोज फेबर्टर्स जो रहते हैं उन लोग उसको पिंक में टर्न कर देते, तो वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव वाले कर सकते। तो ग्राम पॉजिटिव का आप लिख के आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। तो बेसिकली एक आइडिया भी हो गया अगर कि इकोलाई है सब, तो इकोलाई का कुछ इन्फेक्शन है उससे आपको ग्राम नेगेटिव आ गया, तो आप लैब में ऐसा लिख ले सकती थी कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, अगर हम मेकॉन्ग के अगर पे कल्चर करें तो उन लोग पिंक कॉलोनीज में कन्वर्ट कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में याद कर लेते।
And the next question was, is Harsh Mohan okay for pathology in the beginning? I would like Dr. Aisha to answer this. हाँ, बिगनिंग से मतलब अभी तो शुरू तो आपका हो गया सो है, एंड आई थिंक प्रॉब्ली फर्स्ट इंटरनल्स भी हो गए सो है कॉलेजेस में, थोड़े कॉलेजेस में। अगर अभी भी दिख रहा कि देयर इज अ स्कोप कि आई कैन स्विच टू रॉबिन्स, आप जाके ये कर सकते हैं। एंड एज आई सेड, जो भी आप बुक ले रहे हैं पहले तो उस पर ट्रस्ट कर लो कि ये मैं कर ले सकता हूँ बोल के। और हर्ष मोहन भी अगर आप फॉलो कर रहे, हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम्स पे ज्यादा एम्फोसाइज करता हूँ मैं, फिर उसी को आप ड्रॉ करने की कोशिश करो, उसी से जो भी कंटेंट है वो लेने की कोशिश करो। हर्ष मोहन में ज्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज है, ह्यूज कंटेंट देके है, विच आई थिंक इज नॉट नेसेसरी एट यूजी लेवल। तो जो भी हो सकता है सिंपलेस्ट थिंग्स, अगर आप साथ में, अगर हर्ष मोहन अगर आप पढ़ रहे और साथ में आप कोई भी वीडियो रिसोर्स को आप फॉलो कर रहे, तो वीडियो रिसोर्स में जो भी आपको देखे हैं इंपॉर्टेंट ही देते वो लोग। और जो लेक्चर आपको पढ़ाते, ही और शी विल रेफर फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक से, तो आपको स्टैंडर्ड बुक का कंटेंट आपको पढ़ाते। तो एनीवे आपके स्टैंडर्ड बुक्स तो वीडियो से कवर हो जा रहे, तो आप ट्रस्ट करके हर्ष मोहन के साथ जा सकते हैं। हर्ष मोहन की आप ज्यादा डायग्राम से एम्फोसाइज करो, ज्यादा उसी के ऊपर स्ट्रेस करो। और जो भी वीडियो कंटेंट में, वीडियो रिसोर्स में जो भी कॉन्टेक्स्ट है जो कवर नहीं हो सक रहा और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव दिख रहा हर्ष मोहन में, उसको आप स्किप करो और वीडियो के साथ ये करो। इन एन इमरजेंसी बोल रहा हूँ मैं फिल वक्त तो। एंड देर इज अ चांस कि आप अभी तो कुछ ज्यादा भी शुरू नहीं हुआ होगा, जनरल वाला पार्ट चल रहा होगा, अगर सिस्टमिक शुरू भी हो गया तो आई थिंक कि आप यू कैन गो फॉर रॉबिन्स। दैट्स ऑल आई कैन से। Kutsia asked, can you please share the free videos for immunology? Kutsia, you can use osmosis on YouTube. It is best for immunology. Sapura asked, should we just prepare question wise or college teaching wise for all the topics? Sapura, you can go ahead when you have basic idea of the chapter. You can go ahead with previous year's question. From question 9, you can take all the answers, and you can go ahead with question answers wise. Someone asked, is it compulsory to read KD Tripathi? Shabnam, I would like to call Shabnam to answer this. Yeah. As I said, pharmacology is the subject. It is going through your entire career as a doctor. So for a better understanding, you better go with KDT. But Chandbag can also go well. It's depending on you, like your compatibility. If you're not compatible with KDT, then do not waste your time, and you can switch to Shanbag and watch video lectures so that you can get the concept clear. Is it KDT or Sharma Sharma? They are confused in KDT and Sharma Sharma. You can go with KDT without any doubt, and supplement, because it's an extensive. If you are not understanding it, supplement it with any video resources. Okay. Afin asks, should we need to start with clinical studies now itself? Afin, when you go to postings, just see how the history is taken, how doctors are eliciting history from the patient, and what are they following up, how they are prescribing medicines, and how they are investigating, suggesting investigations. So by this you can get to know the idea of disease, how it is progressing, and what are the investigation we are doing in that particular disease. So with that you can start studying clinical subjects itself only. All the subjects, pathology, pharmacology, and microbiology, are integrated with final year subjects. So if you have the idea of these subjects, you can easily understand all the final year subjects. So you can go ahead. You can also read clinical textbooks for medicine. What is that? BJ Mehta. That is very clinically oriented book. You can follow up, and for surgery you can use S Das.
all you will get all the idea of clinical orientation. Okay, Hajra asked, first internals are just 3 days away. I have read just 2 to 3 questions from Robbins. For now, shall I switch to Ramdas Naik? Aisha, would you like to answer this? यस, अगर आपको अभी रॉबिन्स पढ़ने का उतना टाइम नहीं है और 2 to 3 क्वेश्चन से आप कवर करें, तो इंटरनल्स का जितना भी सिलेबस है आप ज्यादा कंटेंट नहीं लिख सकते. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई सजेस्ट कि जस्ट इन ऑर्डर टू नो कि जो पेपर में जो भी क्वेश्चंस कर रहे, एटलीस्ट यू शुड नो समथिंग टू राइट समथिंग इन द पेपर. सो नाउ यू कैन गिव जस्ट अ रीडिंग अबाउट लाइक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको टिक करके या तो पीडीएफ से या फिर किसी से या फिर लाइब्रेरी से बुक बोरो ऐसा करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको एक रीडिंग दे लो. दैट विल सफाइस कि इंटरनल्स में आपको किस तरह से लिखना है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट इंटरनल्स. नेक्स्ट आप खुद ही आगाह हो जाते हैं चीज से कि नहीं आई हैव टू वर्क फ्रॉम लाइक स्टार्ट और थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ता है. एज आई सेड, रॉबिन्स रीडिंग रॉबिन्स विल टेक टाइम, तो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है. तो ऑब्वियसली इट इज लाइक अंडरस्टूड कि आप 2 to 3 क्वेश्चन उससे कर सकते थे अब तक बोले जैसा. तो लेकिन स्टिल आप अगर इंटरनल्स को अच्छी तरह से लिख रहे हैं और आपके कॉलेज में इंटरनल्स का उतना लाइक बहुत ज्यादा वो लोग मार्क्स को लेके है ऑन एंड ऑन योर पार्ट भी आप अच्छा देना चाह रहे, तो नाउ फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक बार आप रामदास नायक के क्वेश्चंस को आप टिक कर लेके एक जस्ट एक रीडिंग दे ले तो भी. और बस आपको जैसा कि पीपीटी में हम लोग शेयर करके थे कि किस तरह से सीक्वेंस ऑफ लाइक क्या क्या रहना है वो लाइक आंसर प्रेजेंटेशन जो जिस तरह से रहना है उस वो पॉइंट्स को वो हेडिंग्स को सब हेडिंग्स को आप अगर मेंशन करके लिख ले रहे तो योर इंटरनल्स इंशाल्लाह विल गो गुड. फातिमा asked के सो मैम हियर दैट केएनएमसी के साइड से वीडियोग्राफी रहने की वजह से प्रैक्टिकल्स में बहुत कम मार्क्स दे रहे, लाइक 50-60 ओनली. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू. आप जो भी मार्क्स मिलते हैं आपको आपके जो परफॉर्मेंस रहेंगी प्रैक्टिकल्स में, जैसा आप वाइवा देंगे, आप जैसा परफॉर्म करेंगे उस बेसिस पे आपको उसके मार्क्स मिलेंगे. Then Rimsha asked how to remember pharmacological action and not to confuse. Dr. Shabnam, can you answer this? Yeah. For the easy remembrance of mechanism of action, you better draw first the physiology. Like if suppose we are trying to read thyroid drugs, so draw a diagram how the thyroid hormones are formed in the flow chart. Then you look at the drugs where they are acting. Like we have sodium iodide symport blockers, then thyroid peroxidase enzyme blockers. So like you better draw a diagram for each and everything, and like because our brain remembers the diagrams better than text, so better make it pictographically. और तो वोलेटाइल बहुत रहता, बेटर आप लोग बार बार रिवाइज करते जाओ एंड पिक्चर से कोरिलेट कर लो तो, और फ्लो चार्ट में लिख लेके बार बार पढ़ते जाओ. That's all. Just revise multiple times so that you don't get confused. Someone is asking, is it okay to study few of the chapters from KDT and few from Chanda? Shabnam? Hello, sorry, क्या बोले? Sayeda is asking, is it okay if we study few chapters from KDT and few chapters from Shanda? हाँ, अगर आपको कोई चैप्टर मुश्किल लग रहा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, then you can go for it. थोड़े चैप्टर्स है लाइक सीवीएस, रीनल के, सीवीएस के, सीएनएस, एएनएस, ये थोड़े इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स केडीटी से कर लो. और थोड़े लाइक माइनर चैप्टर्स लाइक कफ है, डायरिया है, जनरल फार्माकोलॉजी है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ऐसे वाले आप लोग
शान बाग से कर ले सकते हैं, लेकिन जो भी मेन टॉपिक्स कौन सा भी सब्जेक्ट हो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक प्रिफर करो, बिकॉज एट द एंड वी आर स्टडिंग टू बिकम अ ग्रेट डॉक्टर इंशाल्लाह। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। Is someone is asking, is posting attendance mandatory for final year? Is it counting? So basically, when you are posted in so and so department, you need to join that. You need to attend that. That will be counted in final years. Try to maintain 75% of your attendance. Any more queries related to second year subjects? Are you all interested in joining IMSA? No one asked any queries related to IMSA. You can also unmute yourself to ask your queries. No queries? Okay, Dr. Rahula shared the Google form, which is used which from which you can join IMSA. You can join as a membership. Yeah, someone asked how can we join IMSA. I am sharing again the forms. You can fill the form and you can join IMSA. Somebody has asked motivation कैसे maintain रखना. Nice query. Motivation is a one-time temporary thing. तो motivation को आप dedication में मतलब convert करेंगे, regularly consistent रहेंगे उस चीज पर जो भी आप decide कर रहे हैं, that will give you the motivation to push forward. ठीक है ना? One time thing को आप daily अपनी consistency से permanent बना रहे हैं. नीट पीजी की प्रिपरेशन कौन से एरिया से स्टार्ट करना बेस्ट रहेगा? डॉक्टर आयशा, कैन यू आंसर दिस? सॉरी, आप फिर से थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कर दो ना। नीट पीजी की प्रिपरेशन कौन से ईयर से स्टार्ट करना बेस्ट रहेगा? एम आपका नीट पीजी की प्रिपरेशन पे नहीं, एम आपका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्डिंग योर फंडामेंटल्स, योर बेसिक स्ट्रॉन्ग, ये रहना जरूरी है। नीट पीजी सीट आपको आ जाएंगी इंशाल्लाह, अगर आप इसमें आप पक्के रह गए तो। आपको पीजी प्रिपरेशन एम्फेसाइज करने की या उसको स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। कैसा रहता है बोले तो आप सेकेंड ईयर जैसा जैसा आपके लाइक एमबीबीएस प्रोफेशनल ईयर्स आपके जैसा जैसा आगे जाते रहते हैं, सेकेंड ईयर रहते, थर्ड ईयर रहते, फोर्थ ईयर रहते, हर ईयर के अलग चैलेंजेस रहते हैं, हर ईयर में अलग लाइक चैलेंजेस से आपको डील करना पड़ता है। आपको खुद या तो आपको रास्ता मिल जाता है या तो खुद आपको सोच समझ के निकालना पड़ता। तो उसके चैलेंजेस तो आपको फेस करना ही पड़ता। अगर आप नीट पीजी की प्रिपरेशन कर दूं मैं और यूनिवर्सिटी को भी छोड़ देता हूँ बोले तो लाइक यूनिवर्सिटी भी कर दूं, ये दो भी साथ में नहीं हो सकते। अगर आप मल्टीटास्कर है तब भी ये चीज नहीं हो सकते। तो किसी वन थिंग पे आप फोकस करो। नीट पीजी की प्रिपरेशन बोले जैसा नहीं, अगर आप आपके बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे, और लाइक आगे जाके आपको किस तरीके से वो बेनिफिशियल होने वाले हैं, वो आगे के आउटकम को आप दिमाग में रख के ये चीज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका यूनिवर्सिटी भी अच्छे से रहता है और पीजी भी इंशाल्लाह से अच्छा रहता है। लाइक फोकस ऑन बिल्डिंग योर लाइक कॉन्सेप्ट्स।
आपके फंडामेंटल्स को आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह से वो चीज़ होती है। रही बात पीजी प्रिपरेशन की, तो थोड़े बहुत चीज़ें आपको आगे आगे जाके उस चीज़ के बारे में मालूम होता है, आपको खुद ब खुद उसकी उसकी एक अलग से आपको राह मिल जाती। लेकिन आपको देखो, अगर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे, पहले अगर आपके बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है तो आप एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं? आप पीजी में अगर आपको एमसीक्यूज करना है, आपको बेसिक्स नहीं मालूम है, आप कैसे करते? और थोड़े लोग यहाँ पे पूछे थे कि क्लिनिकल पार्ट मतलब अभी से शुरू करना क्या समथिंग बोल के। अगर आप बुकिश नहीं पढ़े, आपको नहीं मालूम है किस तरीके से क्लिनिकल पेशेंट की सिम्टोमेटोलॉजी क्या रहती, कि पेशेंट किस तरीके से कौन से सिम्टम्स से आता, कौन से साइंस से आता बोल के, तो आप अगर पढ़े ही नहीं तो आप किस तरीके से पेशेंट पे देखेंगे? क्लिनिकल पार्ट आप कैसा ही करेंगे जब आप उसके वो कैसा रहता, कोई भी डिजीज है उसका आउटकम क्या रहता, वो अगर वो पेशेंट को कोई डिजीज है तो कौन से साइंस एंड सिम्टम्स उसके अंदर नजर आते हैं। यू डू नॉट हैव दिस नॉलेज, तो आप किस तरीके से डायग्नोस करेंगे? आप क्लिनिशियन भी नहीं बन सकते। तो फर्स्ट थिंग, फोकस ये नको रखो पीजी सीट पे लेके आने के लिए, सबके जैसा रैट रेस में नको दौड़ो। ये चीज ये करो कि मेरे को मेरे हर ईयर के बेसिक्स को और मेरे फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करके रहना है, क्योंकि आप जो है एक एक सीढ़ी आप आगे बढ़ते जा रहे हो। यही चीज कंटिन्यू रहती है आपके थर्ड ईयर में भी, फाइनल ईयर में भी। तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करो। Jazakallah khair, Dr. Aisha. No more queries. How to remember names of microorganisms? बेसिकली अगर आप कंसिस्टेंटली माइक्रो पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद जैसा आप यूज टू हो जाते हो वर्ड्स को। जैसे जैसा आप जैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप टिक करके पढ़ेंगे, आप वो वर्ड जैसा रिवाइज करते रहेंगे, आप वो वर्ड्स को यूज टू हो जाते हैं और आप डिस्कस भी कर सकते हैं आपके फ्रेंड से, तो यू कैन डू लाइक दैट। Do you all have more queries? Someone asked, I have been following GRG for pharma, but it seems like sir is teaching based on PG questions like exceptions for drug actions or any special treatment for particular disease. Now I am having theory exams within a week, so which other professor would be good for exam-based questions? Dr. Shabnam, would you like to answer this? Shabnam? Might be some network issues there. सो बेसिकली जीआरजी फार्माकोलॉजी के लिए आप जो फॉलो करें पीजी क्वेश्चंस के, आप उससे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लीजिए। अगर आप उसके नोट्स बनाए तो दैट विल बी ओके फॉर योर यूनिवर्सिटी टू, बिकॉज उन लोग जो भी एक्सप्लेन करते हैं इजी फॉर्मेट में एक्सप्लेन करते हैं, लाइक फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करते हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा रहता, और फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से क्लिनिकल फीचर यूजेस यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स वो भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप उसके नोट्स बना लिए ऑलरेडी तो यू कैन गो अहेड विद इट, और एल्स अगर आपको प्रॉब्लम हो रही कि उससे फॉलो करना, तो यू कैन स्विच टू एनी एग्जाम ओरिएंटेड बुक लाइक शानबाग और एनीथिंग, और स्मार्ट नोट्स और जो भी इजी एग्जाम ओरिएंटेड बुक है वो फॉलो कर सकते हैं। व्हेन एंड हाउ शुड वी रिवाइज फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स? फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स में बेसिकली अब एनाटॉमी रहता। अब एनाटॉमी क्या करते हैं, आप वोलेटाइल सब्जेक्ट है भूल जाते, डोंट वरी सेकेंड ईयर में उतना एनाटॉमी का यूज नहीं रहता, क्योंकि एनाटॉमी का मोस्ट ऑफ द यूज सर्जरी में रहता। तो अगर आपको रिवाइज करना है, लेकिन सेकेंड ईयर सब्जेक्ट बहुत वास्ट एंड ह्यूज है, आप फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स रिवाइज करना बोले तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है आपके लिए। तो जब एनाटॉमी रिवाइज करना है तो आप सर्जरी जब पढ़ेंगे फाइनल ईयर में, जब एनाटॉमी रिवाइज कर लेना। यू कैन नाउ रिवाइज फिजियोलॉजी, लाइक अब जो भी पैथोजेनेसिस रहता वो बेसिकली नॉर्मल से डिविएट होके पैथोलॉजी होता है उसमें। तो जब भी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे कौन से भी डिजीज का, जब आप नॉर्मल अगर साइड में देख लिए क्या था इसका नॉर्मल, अब जैसा एमआई है, एमआई का जो पैथोजेनेसिस है उससे पहले आप नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट कैसा रहता, कार्डियक साइकिल कैसे रहती, वो अगर देखिए आप, तो वहाँ का आपका फिजियोलॉजी रिवाइज हो जाएगा। फिर अब जैसा एमआई है बोले ना,
फिर बायोकेमिस्ट्री में उसका मार्कर्स रहते, व्हाट आर द मार्कर्स फॉर जो भी हार्ट फेलियर है उसके लिए। तो आप जब बायोकेमिस्ट्री जब देख लेंगे तो आप वो टॉपिक के रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएगा, फिजियोलॉजी भी रिवाइज हो जाएंगे, फिर पैथोलॉजी में भी आपको अच्छे से आइडिया हो जाता। ठीक है ना? Can we use video resources as substitutes for Robbins? Yes, already said in the video, Aisha said ना कि अगर आपको रॉबिन्स पढ़ना नहीं हो रहा तो वीडियोस देख सकते हैं, आप वीडियोस देख के नोट्स बना ले सकते हैं। What is the best video resource for microbiology if I want to learn from Apurva Shastri? नसीर सर है ना, एक गुरुकुल के, he is best for microbiology. अगर आप उनके वीडियोस देख के डायरेक्ट अपूर्वा शास्त्री करें तो दैट विल बी इनफ। सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट समझने के लिए फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है क्या मैम? इफ यस व्हाट सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट? हाँ, ये बोलिए ना मैं क्या, जैसा आप कोई डिजीज पे जा रहे फोकस करने, तो आप पहले उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी, आप बेसिकली अब रॉबिन्स भी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता कि नॉर्मल ऐसा रहता, इससे शिफ्ट होके अब नॉर्मल ये है बोल के। तो जब आप लोग को वो टॉपिक वो डिजीज के बारे में आपको रिवाइज हो जाएगा, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ना? Okay, shall we end this session? Okay. Now let's end this session with dua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakallahu khaira for everyone for your patience listening and attending this wonderful session. You can add your feedback in our MBBS groups, and if you have more queries, you can message there. Jazakallahu khair. We are ending this session.